Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So recently we had a masterclass on auditing exam a smart approach by Hemant Setia, who has scored 70 plus in audit and has shared wonderful insights how we can crack the audit exams and score an exemption. He has shared wonderful tips and tricks. So this is a recording of that masterclass. So what are we waiting for? Let's go. Hello everyone. Today is our second session for students that we are taking so that students can find exam a little bit easy. We have tried for CAs and students only who have given the exams and they have aced it properly. So they are here for sharing their strategies what can help us to give our exams easier. So one such student is Hemant Sethia, and I am very happy. And it reminds me that the first session that I took for the students, Hemant was there. I still remember him, and I am very happy that today he has joined as a speaker. Hemant is from Bangalore. He's doing from his articleship from Bangalore at Khakulia Mundra and Associates, and he's into bank audit and concurrent audits and other auditing stuffs. And I'm sure he's damn expert because he is also an AI enthusiast who is working very actively on LinkedIn about stock market and everything. So I have been following some time. Uh, I have been following your LinkedIn from some time, and the updates are amazing, Hemant. So Thank over you. to you, Hemant. Thank you so much for volunteering to share your experience and expertise how we can get 70 in audit. Audit has been a difficult subject for all of us, so we are going to learn a lot from you. Over to you, Hemant. Yes, sir. Thank you, sir, once again for giving me this opportunity to host the session for the subject like audit. Okay. So yeah. So shall we start? A thumbs up from everyone, those who joined. Yes, yes. Yeah. Great. Okay. So first thing, let me introduce myself. My name is Hemant. Sir introduced me, so not much to introduce. But yes, I'm doing my articleship in Bangalore, and I'm mainly into audits, concurrent, stock, and stat audits. And I'm in a mid-sized firm in Bangalore. Like आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि बैंगलोर में होके मिड साइज फर्म में कैसे है, बिग फोर में क्यों नहीं। तो बता दूं, मैं मेरा बिग फोर में हो गया था, केपीएमजी अहमदाबाद में मेरा हो भी गया था। एंड जस्ट बिकॉज मुझे मुझे आगे प्रैक्टिस करना था, तो आई रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ केपीएमजी अहमदाबाद एंड आई जॉइंड मिड साइज फर्म इन बैंगलोर विच हैज अ ब्रांच इन गुवाहाटी टू। Wow. सो या, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले ऑडिट क्या है? ऑडिट सबके माथे में घूमता है। ऑडिट जब भी एग्जाम देने जाते हैं सब भी, सीए, इंटर सीए, फाइनल में जब आते हैं, सबसे पहले जो आता है कि ऑडिट को कैसे टैकल करेंगे। तो इसी पे बात करेंगे। तो ऑडिट का स्मार्ट अप्रोच, ऑडिट को पढ़ते सब हैं, ठीक है। ऑडिट को स्मार्टली कैसे पढ़ना है? थ्योरी सब्जेक्ट को स्मार्टली पढ़ा जाता है। जब तक आप थ्योरी सब्जेक्ट को स्मार्टली नहीं पढ़ोगे, उसके ऊपर गधे जैसा काम करते रहोगे, वो नहीं बैठेगा आपके दिमाग में। तो वही है, ऑडिट को स्मार्टली पढ़ना है। तो या, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। इसमें मैं अपनी पर्सनली अप्लाइड स्ट्रेटजीज जो मैंने इंटर के टाइम में यूज की थी, जो मुझे 70 लाने में मदद करी थी, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। एंड यस, क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए ओपन है, बट जस्ट बिकॉज मुझे 70 ऑडिट में मिला है, तो एक्सक्लूसिवली फॉर ऑडिट। लेट मी स्विच द स्लाइड। तो स्लाइड स्विच हुआ? हाँ. ओके। तो सबसे पहली बात, क्रैकिंग द ऑडिट कोड। कैसे, मतलब उसको स्टार्ट कैसे करना है? ऑडिट मतलब, ऑडिट के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट लोग जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि लोगों को थ्योरी से डर लगता है, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनको नहीं पता। तो इसी के लिए ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या है ऑडिट में? कॉमन एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। लोग मतलब, मैं अपनी चीज बताऊंगा यहाँ पे कि मैंने जब ऑडिट पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। मैंने सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर से शुरू किया था। तो इनिशियली तो मुझे बहुत मतलब माइंड से अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैंने हाई वेटेज चैप्टर उठाए हैं, अगर कोई लास्ट में चैप्टर छूट भी जाता है तो मेरा कोई ऐसा इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने
मोस्ट ऑफ द वेटेज कवर कर लिया है। तो मैंने जब उससे स्टार्ट किया मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था, और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या करूं, मैं कैसे उसको पढूं, मैंने हाई वेटेज चैप्टर हैं, मैंने क्या गलत किया है, ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, तो मैंने गलती कहाँ करी है। तो मैंने ऐसे ही जस्ट मम्मी से रैंडमली पूछा कि मम्मी मैंने ऑडिट ऐसे ऐसे स्टार्ट किया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मम्मी बोलती है तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तू डायरेक्टली हाई वेटेज चैप्टर से उठा रहा है जहां से कंसेप्ट तेरे को पता है नहीं, और तू डायरेक्ट तुम बीच में घुस रहा है, समुंदर में डूब रहा है। तो वहीं से फिर मेरे को समझ आया कि ठीक है, चैप्टर 1 2 3 जो बेसिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, मैंने वहां से स्टार्ट किया। मैंने वहां से स्टार्ट किया, ऑडिट की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी, ऑडिट की बेसिक मेथोडोलॉजी समझी, कैसे वर्क करता है ऑडिट, और उसका आगे क्या क्या मतलब रेलेवेंस है, कैसे कनेक्शंस करना है ऑडिट का हर चैप्टर में, तो मुझे वो वहां से पता चला। तो यस, चैलेंजेस सबसे बड़ी यही है कि आपको कहीं बीच में से ऑडिट स्टार्ट नहीं करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट पॉइंट। सेकेंड थिंग, अप्रोच। अप्रोच में मतलब अप्रोच विल टेक अप लेटर, क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आ जाता है, तो अप्रोच विल टेक अप लेटर। टेक्निक्स, सबसे बड़ी चीज ऑडिट पढ़ने के लिए टेक्निक्स। मतलब लोग क्या करते हैं कि अगर चलो मान भी लिए कि सबसे पहले चैप्टर 1 2 3 बेसिक से स्टार्ट किए, तो लोग क्या करते हैं कि बस उस बुक को ले लेंगे, मॉड्यूल को ले लेंगे, जो भी जिस भी रेफरेंस ऊपर पढ़ रहे हैं मॉड्यूल ले लेंगे, एंड दे विल जस्ट स्टार्ट मतलब रीडिंग, अब वो रट्टा मारने लग जाएंगे। नहीं, वो नहीं करना, रट्टा मारोगे तो मतलब आपके शॉर्ट टर्म के लिए आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगा, बट व्हेन यू रिकॉल इट आफ्टर 2 और 3 डेज वो आपको लगेगा कि रिकॉल नहीं हो रहा है, और आप नया कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हो, और पुराना आपको याद नहीं रह रहा है। तो वो सबसे बड़ी टेक्निक है। मतलब मैंने जितना देखा है, लोग अभी भी ये टेक्निक यूज करते हैं कि चलो रट्टा मारते हैं, एकदम बैठाने घोल के पीने वाली चीज होती है ना, जो वही करते हैं कि मैं ये कर लूँ, मुझे हर चीज याद रहेगी, मैं एकदम कट टू कट वर्ड टू वर्ड आंसर लिखूंगा एग्जाम में। नहीं होता, नहीं पॉसिबल है। आपको आपको विद सम शॉर्ट नोट्स, वो कोई टेक्निक्स है मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो उस अप्रोच से आपको चलना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। ओवरऑल आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, जब आपका सब कुछ सही है तो बस आपकी एक ही चीज की कमी रह जाती है, वो कॉन्फिडेंस। क्योंकि लोग आपको गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते कि ऑडिट है एकदम मतलब सबसे टफ सब्जेक्ट है, सीए इंटर और फाइनल करिकुलम का ऑब्वियसली। एंड लोग जो 80 से 90%, 80 to 90 नहीं, इट विल नॉट बी लाइक गुड टू से दैट, 60 to 70%, 75% अराउंड लोग ऑडिट और कहीं ना कहीं लॉ में रह जाते हैं, जो कि दोनों थ्योरी सब्जेक्ट है। तो या तो उनका एग्रीगेट रह जाता है, नहीं तो उनका वो 1 या 2 या 4 5 नंबर के मार्जिन से नहीं क्लियर हो पाता। तो कॉन्फिडेंस इज द की। सो बेसिक्स अपने देख लिए, एंड नाउ कमिंग टू द मेन कंटेंट। स्ट्रगलिंग मतलब जो गलत टेक्निक्स है, जो ब्लंडर्स आप लोग करते हो, वो सब ब्लंडर्स मैंने भी किए थे जब मैं इंटर पढ़ रहा था। बट ठीक है, मुझे समझ में आ गया था धीरे धीरे कि इट्स नॉट द राइट अप्रोच, तो बस वही ब्लंडर्स मैं डिस्कस करूंगा। मतलब मेनली टेक्निक से ज्यादा मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप गलतियां क्या क्या करते हो ऑडिट पढ़ने के टाइम पे, जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो वो टेक्निक ऑलरेडी आपकी स्मूथ होती जाएगी। सो फर्स्ट गलती, रोट मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग। रट्टा मार कंसेप्ट जो हम लोग करते हैं ना, कि हाँ वर्ड टू वर्ड याद करना, कि हाँ वही अगर एग्जाम में वही आ गया, वही चेप के आ जाएंगे, एंड सेक्शन भी याद रखना है, सब कुछ याद रखना है, एंड एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है थ्योरी सब्जेक्ट में। आप हर एक चीज़ मेमोराइज नहीं कर सकते। अगर आप सेक्शन भी मेमोराइज कर लेते हो तो वो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं भी करते हो तो ठीक है, उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। आप सेक्शंस कोट करते हो तो वेल एंड गुड है, बस तो उसको कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट, रोड मेमोराइजेशन, रट्टा मार नहीं चलेगा, रट्टा नहीं मारना है। पुअर नोट टेकिंग, सेकंड, पुअर नोट टेकिंग। मैं मतलब इस चीज से बहुत मतलब वो हूँ क्या, मतलब चौंका हुआ हूँ कि लोग, काफी लोग मैं यहाँ बेंगलोर में भी देख रहा हूँ, जो मेरे मतलब जूनियर्स है, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल सॉरी इंटरमीडिएट दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मतलब अपने जो जहाँ से कोचिंग ले रखी है, या जहाँ से भी मतलब मैराथन्स वगैरह कर रहे हैं, फास्टर क्लासेस वगैरह ले रखी हैं, तो वहाँ से वो क्या करते हैं कि वो लोग जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो बस उन्हीं को रेफर कर रहे हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ, मैं एक दो जनों के कन्फ्रंट करने के लिए गया कि भाई ऐसा क्यों, कैसे कर रहे हो, ऑडिट कैसे पढ़ रहे हो, तो बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट के नोट्स है ना, काफ़ी है,
मैं बोला नहीं ये काफी नहीं है, डोंट मेक दिस ब्लंडर। क्योंकि इंस्टीट्यूट की मतलब इंस्टीट्यूट सॉरी, वो जो भी फैकल्टी के आप नोट्स लेते हो, दोज आर जस्ट फॉर, मतलब आपका कंटेंट कंसाइज करने के लिए होता है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं होता। वो जब टीचर पढ़ाता है तो उनको साथ में लेके पढ़ना होता है। ओके। आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपनी नोट्स बनाने होंगे जो आपको कम टाइम में रिवीजन आगे फर्दर हेल्प करेंगे। जो वो कलरफुल नोट्स होते हैं जो वहां से आते हैं फैकल्टी देता है, वो आपको रेफर विद द क्लास करने हैं। उससे आप रट्टा मारोगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत कंसाइज होता है, बट इट इज अ वास्ट कंटेंट टू मेमोराइज इट। ओके। तो अपने खुद के नोट्स अल्टीमेटली वही काम आने वाले, क्योंकि आप अपने जब नोट्स देखोगे ना कि हाँ मैंने इतने प्यार से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से नोट्स बनाए हैं। हाँ, अच्छे से नोट्स बनाना भी इज अ वेरी बिग पॉइंट, क्योंकि आप अगर ऐसे घासा पीटा ऐसे करोगे, कुछ भी तरीके से नोट्स बनाओगे, तो आपको खुद को पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप सोचोगे कि क्या यार क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ो वो फैकल्टी के नोट्स ही रेफर करता हूँ। तो अच्छे से नोट्स बनाना इज ऑल्सो पॉइंट। तो जब आप वो नोट्स देखोगे ना, जब एट द एंड ऑफ द कोर्स आपका जब सिलेबस वगैरह खत्म हो जाएगा, तो जब आप उस नोट्स को देखोगे आपको पढ़ने की इच्छा करेगी कि हाँ चलो मैं पढ़ता हूँ, ये मेरे बनाए हुए नोट्स है, मेरे को हेल्प हो जाएगी एग्जाम में इसी से, मुझे और कहीं मतलब देखने की जरूरत नहीं है। तो वही है, आपको नोट टेकिंग अपनी करनी पड़ेगी, और अगर कर रहे हो अच्छे से, नहीं कर रहे हो तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आपको होता है ना, वो हम स्कूल में करते हैं ना फेयर वर्क, वैसा वाला आपको नोट बनाना पड़ेगा। पैसिव लर्निंग। थर्ड इज पैसिव लर्निंग। मतलब पैसिव लर्निंग इन द सेंस मैं ये बोलूंगा कि आप जस्ट ऑडिट को पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उसमें, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि हाँ क्लासेस कर ली। एंड 3 घंटे का एक लेक्चर होता है, कोई भी फैकल्टी का, ऑडिट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो 3 घंटे का पकड़ के चलते हैं, 2.5 से 3 घंटे का। तो 3 घंटे बैठ लिए, वो जो पढ़ा रहे हो पढ़ लिए, क्लास के बाद गो थ्रू कर लिए, नहीं ऐसा नहीं चलता। आपको अलग से ऑडिट को टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टाइम टू ऑडिट, तभी आपके वो दिमाग में बैठेगा। ऐसा सोचने से नहीं चलेगा कि हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, यू कैन कंसिडर इट इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि वहां पे आप प्रैक्टिकल चीजें आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। ऑडिट में नहीं। ऑडिट के आपको वापस रिव्यू करना ही पड़ेगा। तो आपने सुना है ना 21 डेज वाला जो चीज रहता है, वो 21 डेज तक, वो कहीं ना कहीं ठीक है, मैं बिलीव नहीं करता ज्यादा, बट आपको ऑडिट को टच में रखना पड़ेगा तभी होगा। आपको पैसिव से एक्टिव लर्निंग में शिफ्ट करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। इंटरेस्ट लेना होगा। फोर्थ इज लैक ऑफ कंसिस्टेंट रिव्यू। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपना इसी पॉइंट में, कि मैंने जब इंटरमीडिएट का ऑडिट स्टार्ट किया था, मैंने बेसिक्स कर लिया था। जब बारी आई मतलब स्टैंडर्ड्स कवर करने की, और जब बारी आई स्टैंडर्ड्स कवर करने की, और बड़े बड़े वेटेज वाले चैप्टर्स में शिफ्ट होने की, तो मैंने किया कि मैंने सोचा कि कुछ दिन ब्रेक ले लेता हूँ। पहले मैं बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करूंगा, उसके बाद मैं शिफ्ट करूंगा बड़े वेटेज वाले चैप्टर्स में। तो ठीक है, मैं चल रहा था, कुछ दिनों का ब्रेक लिया, 7 से 8 दिनों का ब्रेक लिया जहाँ तक मुझे याद है। एंड फिर उसके बाद मैंने बड़ी वेटेज वाले चैप्टर्स उठाए। तो जब मैं बड़े वेटेज वाले चैप्टर्स उठा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने अभी अभी जस्ट क्लासेस परचेज करी हैं। तो मैं सब भूल चुका था, सब आउट ऑफ मतलब कहाँ आउट ऑफ नोवेयर गायब हो गया था सब दिमाग से, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा था। एंड क्या ही बताऊं मैं, मतलब कुछ कुछ भी जो ऐसा लग रहा था कि जितना भी ऑडिट पहले स्टार्ट किया था, जो भी बेसिक्स मैंने कवर किए थे, दैट वाज जस्ट मतलब अ वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं था। तो वही है बेसिक्स, अगर आपको कनेक्ट करने हैं विथ बेस मतलब क्या बोलूँ मैं, हाँ जस्ट सेकंड सॉरी, अगर बेसिक्स आपको कन्वर्ट करने हैं इनटू मतलब इफेक्टिव लर्निंग, आपको आगे हाई हाई वेटेज चैप्टर्स के साथ कनेक्ट करना है बढ़िया से, तो आपको वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं भी रिकॉल हो रहा है पीछे वाला, तो यू जस्ट कैरी ऑन विथ योर क्लासेस, एंड जो आपका भी रेगुलर रिवीजन जो भी रूटीन है आप कैरी ऑन करो उसको। वो रिकॉल होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो एक बार के लिए ऐसा मुझे भी लगा था कि हाँ यार कहीं ना कहीं कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है, सब बॉडी के दिमाग से, क्या वापस स्टार्ट करूँ फ्रॉम स्क्रैच ऑडिट को। तो नहीं, मैंने स्क्रैच से स्टार्ट भी किया था वापस। तो मुझे दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि हाँ मुझे कुछ रिकॉल नहीं है, तो मैं बोला कि यार चलो करते हैं, कुछ होगा देखा जाएगा। तो यू हैव टू कंटिन्यू योर क्लासेस, या आप जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली। आप ब्रेक दोगे, पहले का सब उड़ जाएगा। सीधी सी एक ही बात बोलूंगा, अगर आप ऑडिट को छोड़ोगे वो आपको छोड़ देगी। आई होप यू कैन रिलेट विद इट। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। हर थ्योरी कौन पढ़ेगा, मैं तो प्रैक्टिकल में स्कोर कर लूंगा, ये माइंडसेट बहुत लोगों को होता है
यार चलो, थ्योरी है, फर्स्ट ग्रुप में लॉ है एंड सेकंड ग्रुप में ऑडिट है। पहले तो एफएमएसएम भी था, तो एसएम को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अब दोनों ग्रुप में एक एक थ्योरी है। तो जो लोग सिंगल ग्रुप देते हैं, मैंने उनमें ज्यादा देखा है कि एक एक ग्रुप देना है ना, तो वो हम थ्योरी को कम रेलेवेंस देते हैं, उसमें दो दो बचे हुए दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ही हैं, हम उसमें 80 85 90 खींच लेंगे। एंड ऑडिट में थोड़ा कम मतलब टाइम देने से हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑडिट ऑल्सो रिक्वायर्स 40 ना, उसके बिना आप ग्रुप नहीं पास कर सकते। अगर आप वो फेल हो जाओगे ना ऑडिट का सब्जेक्ट, तो आपको मतलब पूरा ग्रुप ही आपको रीअपियर करना पड़ेगा until unless you have an exemption in both of the subject or either any of one। तो आपका एक अटेम्प्ट कंज्यूम हो गया। ऑडिट इन इटसेल्फ इज मतलब आपको 40 से पास करना ही पड़ेगा। उसका कोई मतलब वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपको 40 से करना ही पड़ेगा। तो मतलब एक दोस्त है मेरा जिसने अ, जिसका माइंडसेट मैंने थोड़ा उल्टा देखा, कि वो बोलता है मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नहीं होता एंड मुझे थ्योरी बहुत अच्छे से चढ़ती है दिमाग में। तो मैं बोला बढ़िया है, तेरी तो अलग प्रॉब्लम है सबसे। तो वो बोलता है कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम रेफर करूँ तो चलेगा। मैं बोला हाँ चलेगा, बट तेरा मतलब थ्योरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, थ्योरी तेरे को अच्छे से करनी है एंड तेरे को साथ साथ में प्रैक्टिकल भी लेके चलना है। क्योंकि वो ऐसा था ना, उसका उल्टा था, मैं बोल रहा हूँ ना। तो वो ऐसा था कि उसको प्रैक्टिकल थोड़ा कम करना है, वो प्रैक्टिकल ज्यादा कवर नहीं करता था। तो मैं उसको यही बात बोला, आइदर ऑफ द वेज, अगर आपको प्रैक्टिकल भी चढ़ता है और थ्योरी भी चढ़ता है, और या दोनों ही नहीं चढ़ता, तो आप वैसे कर लो। एक चीज को आपको टालना पड़ेगा। एंड जो रह जाता है, जो आपको मतलब दिमाग में अच्छे से नहीं जाता है या आपको टफ लगता है कोई एरिया, तो उसका जस्ट आपको मतलब उसका बेसिक्स कवर करो। एंड उसका जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, जैसे कि ऑडिट में, इंटर में तो सबको पता ही होगा कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग विच आर द लाइक बेस ऑफ ऑडिटिंग, रूट्स ऑफ ऑडिटिंग। सो वही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, थ्योरी को टाइम देना है अच्छा खासा। एंड इस पॉइंट पे हम आगे करेंगे और डिस्कस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन। मतलब मैं वही बोल रहा था ना कि मैंने डायरेक्ट से हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट किया था। तो मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी, मेरे को मतलब एक ही काम को दो बार करना पड़ा था। तो प्लीज यू ऑल डोंट डोंट डू दिस मिस्टेक। आप लोग मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करना, भले आपको थोड़ा टाइम लगे। और ठीक है, बेसिक्स में टाइम लगता है, आपको ग्रैब अप करने में टाइम लगता है, फाउंडेशन बनाने में टाइम लगता है। बट आपका जो आगे वाला जो होता है ना, जो मतलब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं, आगे वाले जो मतलब चैप्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, जिसमें मतलब थोड़ी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है एंड थोड़ा एफिशिएंसी और मतलब जाता है उस चैप्टर में, कि भाई नहीं हो रहा है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो वो आपका एफिशिएंसी रीगेन करने में मदद करेगा अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग होगी। कंसिस्टेंसी, प्लानिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ डिसिप्लिन रूटीन। ओके। तो मैंने जब ऑडिट स्टार्ट किया था, तो मैंने एक रूटीन बना के रखा था कि मैं हर रोज सुबह ऑडिट करूंगा। कुछ दिनों तक रूटीन फॉलो हुआ। और बनाए हुए रूटीन तो अक्सर फॉलो नहीं होते हैं, बट मेरा कुछ दिन हुआ, मतलब 7 से 8 दिन जहाँ तक मेरे को याद है हुआ। उसके बाद मेरा ऐसा था कि यार कौन सुबह उठेगा इतना जल्दी, ऑडिट पूरा दिन पड़ा है, कभी भी कर लूंगा। एंड मतलब क्या बोलूँ, सुबह कौन उठेगा, हाँ सुबह कौन उठेगा, पूरा दिन पड़ा है, ऑडिट कभी भी कर लूंगा, सुबह आराम से सोता हूँ या फिर कुछ और करता हूँ, खेलने जाता हूँ। नहीं, कंसिस्टेंसी। आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आप ऑडिट को छोड़ोगे तो वो आपको छोड़ देगी। जस्ट बिलीव मी। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको मतलब दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा, रोज ना रोज कुछ भी करो आप, चाहे पुराने चैप्टर्स करो, चाहे नया कंटेंट कंज्यूम करो, या फिर आप पॉकेट रिवीजन नोट्स देख रहे हो, या फिर आप मैराथन्स देख रहे हो जैसे मैं करता हूँ ट्रैवलिंग टाइम में। अभी तो खैर कोई हेवन है नहीं पढ़ाई, बट मैं बोलता हूँ कि जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, तब आप ज़्यादा नया कंटेंट नहीं कंज्यूम कर सकते ना, क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस में होते हो, मेट्रो में होते हो, वहाँ पे आप वो पेन डाउन नहीं कर सकते चीज़ों को। तो एटलीस्ट आप जो पढ़ा है वो रिवाइज करो। अगर नया कंटेंट नहीं कंज्यूम हो रहा है, तो रिवाइज द प्रीवियस वंस। वो वही चीज़ आपकी स्ट्रांग ही होगी जितनी बार आप रिवाइज करोगे। तो वही बात है। और स्टडी इन द मॉर्निंग एंड रिवाइज इन द इवनिंग, दिस हैज बीन द की टू, मतलब मेरे को जो ऑडिट में 70 मिला है, दिस वाज द बिगेस्ट पॉइंट जो मेरे को ऑडिट में 70 लाने में मदद किया है। थ्योरी सब्जेक्ट होता है ना, वो सुबह पढ़ने में और रात को पढ़ने में दिन रात का फर्क है। सुबह जब आप 3 बजे के बाद उठते हो ना, तो आपका जो माइंड का जो एफिशिएंसी रहता है वो 100% रहता है। मेरी मम्मी कहती थी कि सुबह 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 से 6 के बीच में आपकी एफिशिएंसी 100% रहती है, जो 4 5 घंटे का काम होता है वो 2 घंटे में हो जाता है, स्पेशली थ्योरी में।
तो ऑडिट को सुबह पढ़ने का, सुबह टैकल करने का सोचो, क्योंकि सुबह आपका मूड भी फ्रेश रहता है, एंड आप नया कंटेंट भी अगर कंज्यूम करो तो वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है। अवॉइड रिवाइजिंग ऑडिट इन द मॉर्निंग एंड ट्राई कंज्यूमिंग न्यू कंटेंट इन द मॉर्निंग। ये आपका, जैसे मैंने इधर लिखा ही है, विल मेक योर टास्क इजियर बाय ऑलमोस्ट 50%। आपकी जो खाटनी है ऑडिट में ना, वो आपकी 50% यही कम हो जाएगी, जो आपको लगता है कि यार ऑडिट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग, मैंने देखा है, लोग कभी भी मतलब खाली बैठे हैं, लोग ऑडिट लेके बैठ गए, ऐसे नहीं चलता है उसको। मतलब टाइम से प्लान करना होता है कि कब करना है, खासकर सुबह करूँ। बहुत लोगों को सुबह उठने की आदत नहीं होती। मैं तो अभी भी यही बोलता हूँ कि सुबह उठो, मेरे को बोल दो, मैं उठा दूंगा। मेरे जो मतलब कलीग्स थे जिसके साथ मैंने इंटर दिया था, मैं तो उनको यही बोलता था कि अगर नहीं उठ पाते तो मुझे बोलो, मैं उठा दूंगा। पर ऑडिट और लॉ जैसे सब्जेक्ट, दोनों थ्योरी हैं, खास करके ऑडिट जिसमें स्टैंडर्ड्स रिवाइज मतलब दिमाग में रखने पड़ते हैं, विच विल कनेक्ट योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर। तो उसको आप स्टार्टिंग सुबह उठते ही कवर करो। थर्ड वन इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये भी है, मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि मुझे टाइम लगा था कंसेप्ट ग्रैब अप करने में। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो हम लोग न्यूमोनिक्स बनाते हैं, मतलब कैसे क्या अप्रोच करना ऑडिट को, जो प्लान बनाते हैं, उसमें टाइम लगता है, नो डाउट। जो आपका फर्स्ट फर्स्ट 30% ऑफ ऑडिट विल टेक अब 60% ऑफ योर टाइम, एंड नेक्स्ट 70% ऑफ योर ऑडिट विल टेक 40% ऑफ योर टाइम। ये मेरी साइकोलॉजी है, मैं ऑडिट को ऐसे ही लेके चलाता था। तो अगर आपको टाइम भी लग रहा है कॉन्सेप्ट ग्रैब अप करने में, तो आप आराम से टाइम लो, क्योंकि अगर आपकी नींव अच्छी है तो आपको मतलब ज्यादा लंबी बिल्डिंग बनाने में टाइम नहीं लगेगा, सीधी बात है। अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप कोई भी कंसेप्ट को आसानी से टैकल कर लोगे, भले ही एक बार में नहीं, बट अगर एक से दो बार, दो से तीन बार, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको करने में। तो वही है, कंसेप्ट स्ट्रांग रखो। एंड यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया, देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज क्रूशियल देन अनदर। सॉरी, राइटिंग टाइपिंग मिस्टेक होगी। हाँ, आई होप सी स्टूडेंट इससे रिलेट कर पाए। नेक्स्ट आते हैं हम द करेक्ट अप्रोच पे। जो मैं जो मैंने इस सेशन का मतलब वो थीम रखा था, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, स्मार्ट अप्रोच। तो ये है द करेक्ट अप्रोच। अप्रोच है ना जो आपका, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में। क्योंकि अगर आप कहीं से भी कोई भी चैप्टर उठा लोगे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा वो आपके बैठेगा ही नहीं। यू हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एवरी ईच एंड एवरी टाइम। ये डिस्कस करने से पहले मैं पूछूं, कितने जन हैं? ऑल आर अवेकन? हाँ, ऑब्वियसली। मुझे लगा कमेंट्स सर भी आप है, सो गए। चैट्स भी है। नहीं नहीं, अरे नहीं सो यार, सुन रहे हैं तुम्हारा। कोई कोई बात बहुत जबरदस्त है, टेंशन मत लो, सुन रहे हैं पूरा। ओके ओके, हम्म। टेंशन मत लो, मैं इसको प्रैक्टिकल बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑडिट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। एक्चुअली कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ही तो है जो काम आते हैं ना भाई। हाँ आज सर, थ्योरी में और क्या ही करेंगे। पढ़ते तो सभी है, देखो। आज मैंने हाँ भी पढ़ा था। आज हो गया 8 साल, लेकिन मैंने भी पढ़ा था। तो क्या हम लोग अपना पूरा एफर्ट्स देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके सही डायरेक्शन में एफर्ट्स देंगे तो रिजल्ट्स और अच्छा आएगा। बस वही तो चाहिए ना, कि भाई हाँ सर। रिजल्ट्स तो लाना। टिप्स एंड ट्रिक्स का खेल है, मुझे जितना मालूम है। पढ़ाई तो सब कर ही रहे हैं। आज हम भी ऑडिट पढ़ते थे तो कभी बोरिंग हो रहा है, कभी शाम को, कभी दिन में। एक कंसिस्टेंटली मैंने जिस हिसाब से तुमने अभी बोला, वो कंसिस्टेंट बिहेवियर विथ ऑडिट था ही नहीं। हम लोग बस पढ़ना है, बस जस्ट हो जाए बस। लेकिन ये तुमने कुछ कुछ बातें बहुत सही बोली है, मतलब। ठीक है ना? तो हाँ एक, सर, थैंक यू। अब रुक जाते हैं। किसी को डाउट है तो मैं अनम्यूट कर सकता हूं अभी, जितना इसने बताया। हाँ किसी प्लीज। को डाउट है तो वी कैन टॉक। किसी को अनम्यूट करना है इन द चैट्स, आई एम रेडी, वेटिंग। शेल वी मूव अहेड? नहीं? ओके सर, किसी को डाउट्स नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ग्रेट, ओके। हम्म। तो अच्छा है, आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है, होप अप्लाई भी करो उसको। सिंस यहाँ पे सारे इंटर पास आउट है ना, सब फाइनेंस के है ना, जो जो इंटर की हाँ वो सब हाँ, सब फाइनेंस के ही हैं। हाँ, हाँ मैक्सिमम इंटर पास से लग रहे हैं मुझे। हम्म। हाँ, ये खाली इंटर
सेंट्रिक नहीं है ये, इसमें आप फाइनल भी मतलब फाइनल्स में भी आप ये कर सकते हो, मैं खुद करने वाला हूँ इसको। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑडिट सब्जेक्ट कंटेंट खाली चेंज होगा, उसके हाँ, अलावा तो सब कुछ। पढ़ने का अप्रोच सेम ही रहने वाला है। हाँ, अप्रोच और स्टडी तो मटेरियल वही रहना है, मतलब अल्टीमेटली वो वहाँ हाँ। सब्जेक्ट और वो जो है उसका जो नेचर है वो तो वही है ना। हाँ ठीक सर। है ना। चलो, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ से छोड़ा था हमने? हाँ, ये यहाँ अप्रोच। पे छोड़ा था। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट आता है अप्रोच। कैसे हम लोग स्मार्टली मतलब अप्रोच कर सकते हैं ऑडिट को, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारा जो कंटेंट है ऑडिट का वो भी दिमाग में जल्दी घुसे, उसमें भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिचकिचाहट नहीं होगी, यार नहीं घुस रहा है, इरिटेशन होने लग जाता है कभी कभी कि हाँ यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। तो करेक्ट अप्रोच। सबसे पहला स्टेप है प्लान योर सिलेबस वाइजली। आप जब नया नया ऑडिट स्टार्ट करते हो ना, उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि आपका जो ऑडिट का सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करो। उसमें है क्या क्या, स्टैंडर्ड्स हो गए, और एक दो चैप्टर, दो तीन चैप्टर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, एंड एक दो चैप्टर्स बैंक ऑडिट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है अदर एंटिटीज का, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्कूल्स वगैरह आ जाता है। ये मैं इंटर की सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो आपको ब्रेक डाउन करना है सिलेबस को। अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मतलब ठीक है कि बेसिक कर लिया, बेसिक पूरा हो गया खत्म। अब मेरे को अगर कोई दूसरे में जंप करना है तो बेसिक आपको कहीं भी जंप करने में हेल्प करेगा। अगर आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है तो आप बेसिक के नेक्स्ट स्टेप भी नहीं जा सकते। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप एक बार में आप कोई भी दूसरे भी चैप्टर में अगर आप चले जाओ तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑल चैप्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसमें हर स्टैंडर्ड का अलग अलग रेफरेंस है। हर तो वेटेज देके आप सबसे पहले प्लान करो अपने सिलेबस को कि कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। पास्ट ट्रेंड्स एनालाइज करो कि मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि जिसमें कंपनीज एक्ट रिपोर्ट ऑर्डर कारो 30 मार्क्स का आया था। जहाँ तक मेरे को याद है वो 2020 का अटेम्प्ट था, 21 का अटेम्प्ट था, जो मतलब उस टाइम नया नया आया था। एंड इंस्टीट्यूट प्लेड विद एवरीवन कि हाँ यार चलो, नया तो है, आना तो है ही है, बच्चे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा, ये चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है कोर्स में, तो क्यों ना इसको 30 मार्क्स का पूछते हैं। तो आई वाज लाइक कि ये तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो लोग मतलब कारों को अच्छे से करके गए थे, 30% ऑफ योर सिलेबस, मतलब 30% ऑफ योर एग्जाम पेपर कवर्स ऑफ कारो, एंड दैट इज सबसे इजी चैप्टर इंटर के कोर्स में। जहाँ तक वो मेरे को लगा वो सबसे इजी, मतलब कम टाइम में मेरे को ग्रैब अप हुआ। जो उसमें पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है ग्रैब अप। तो अगर आप प्लान करोगे अच्छे से कि कौन सा चैप्टर किसके बाद करना है, अगर आप कोई एक चैप्टर अभी लेके बैठे हो तो सोच के रखो मन में कि कहीं ना कहीं इसके बाद मेरे को ये चैप्टर उठाना है। वो पॉइंट ऑफ व्यू मन में लेके चलो। उसके बाद यूज न्यूमोनिक्स, बट जुडिशियली। जुडिशियली इसलिए क्योंकि बहुत लोग न्यूमोनिक्स को ज़्यादा यूज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में न्यूमोनिक्स घुसा देते हैं। तो आप न्यूमोनिक्स यूज करो, बट अपने कंफर्ट के लिए, मतलब कंफर्ट जोन के अंदर ही रहने के लिए नहीं, समझे हो। तो निमोनिक्स यूज करो, बट हर चीज में नहीं। जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आती है चीजों को ग्रैब करने में, दो दो बार ट्राई कर लिया, तीन बार ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, निमोनिक्स यूज करो। यूज 3 लेयर्स ऑफ सक्सेसफुल रिकॉलिंग। मैं तो ये यूज करता था। सबसे पहला, द राइट निमोनिक। मान लो कोई एक टॉपिक है तो उसमें 8 से 10 पॉइंट है, और वो अगर एग्जाम में आए तो 4 से 5 नंबर का आ सकता है। तो आप एक ऐसा निमोनिक बनाओ जो उस हेडिंग से, सब हेडिंग से रिलेटेड हो, कि वो टॉपिक किस बारे में है, आप उसके रिलेटेड एक निमोनिक बनाओ। ताकि वो जब टॉपिक के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो ऐसे ही पूछेगा ना कि इस टॉपिक के बारे में बताओ। जो भी है केस स्टडी अगर पूछ लिया तो दिस इज द केस, इसका क्या सिनेरियो बनता है। तो वो चीज आपको की पॉइंट वही ना मिलेगा ही, तो आप उसी के रिलेटेड अगर निमोनिक बनाते हो ना तो उससे बेटर कुछ नहीं है। वो आपको सबसे पहले रिकॉल होगा। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो इट कम्स अ सेकंड स्टेप, वर्ड्स फ्रॉम ईच लेटर। तो जैसे मैंने कहा था 10 पॉइंट हैं, तो 10 पॉइंट के स्टार्टिंग या जो भी मेन पॉइंट्स है उसके हर मेन पॉइंट्स के एक एक वर्ड्स के लेटर्स को, जैसे मैंने बोला ना, फर्स्ट फर्स्ट अगर लेटर है सेंटेंस का, तो अगर वो मीनिंगफुल कुछ मीनिंग क्रिएट कर रहा है तो उससे आप निमोनिक बनाओ। उसको आप इंक्लूड करो निमोनिक बनाने में। अगर वो सेंस नहीं मेक कर रहा है, जैसे हर सेंटेंस का ज्यादातर यही होता है, द और इन, ये सब चीज होता है, तो ये सब कोई सेंस बनाता नहीं है निमोनिक बनाने में।
तो मैं तो बीच में से उठाता था, मतलब कि जो की पॉइंट है, जो मतलब ऑडिट का सेंटेंस, जो सेंटेंस का मतलब एसेंस में है, वो अगर वर्ड निकल जाए ना, तो वो मतलब सेंटेंस याद आ जाता है, उस सेंटेंस का एसेंस निकल के आ जाता है। तो ऐसा एक वर्ड निकालो जिससे मतलब मीनिंगफुल निमोनिक बने, उसका लेटर, फर्स्ट लेटर उठाओ और वहां से निमोनिक बनाओ हर सेंटेंस में से। और ऑडिट में हर टॉपिक में मतलब है ही है, 7 से 8 से 10 पॉइंट है ही है, आई बेट। ओके, सो थर्ड, कंप्लीट द पॉइंट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर वर्ड। कंप्लीट द पॉइंट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर वर्ड। जो आपने वर्ड बनाया है, एक बार वापस रिव्यू करो कि मैंने जो वर्ड बनाया है वो रेलेवेंट है कि नहीं, वो पॉइंट पे मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहे तो आपको, ऑब्वियस ही बात है, वो आपको अभी के लिए आपको संतुष्टि हो रही है कि हाँ मैंने निमोनिक बना लिया है। फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मैंने निमोनिक भी बनाया था फिर भी मेरे को याद नहीं है। तो आपकी कहीं ना कहीं निमोनिक बनाने में ही कमी रह गई है, तो आपको निमोनिक बनाने के बाद वापस एक बार निमोनिक यूज करके देखना है कि आपका सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है बैठ रहा है तो वेल एंड गुड, से बढ़िया और क्या है फिर। नीचे बोनस बोनस टिप भी है, देखो। डोंट ओवर रिलाई ऑन एनी टेक्निक। मेनली ओवर, ये निमोनिक बनाने के लिए मैंने लिखी थी ये, कि बहुत लोग होते हैं ना, हर टॉपिक में निमोनिक बना लेते हैं, हर टॉपिक में निमोनिक बना लेते हैं कि हाँ मेरे को याद आ जाएगा, नहीं, फिर वो सब सारे निमोनिक मिक्सअप हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। बकेटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ स्मार्ट स्टडी टेक्निक। Bucketing involves dividing information into distinct categories or buckets to make it easier to understand, process, and remember. अब बकेटिंग क्या होती है, सीधी भाषा में बताता हूँ। बकेटिंग यानी कि वही 10 पॉइंट उठा लो जो मैंने बोला था निमोनिक्स बनाने के लिए। कंसिडर करो कि अभी हम निमोनिक्स नहीं बना रहे हैं, जस्ट वो 10 पॉइंट है हमारे सामने, उसको हमको दिमाग में कैसे बैठाना है। तो उसकी बकेटिंग करो। जैसे मेरे को एक दो टॉपिक्स याद है जहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 710 में बोला था, कुछ ऐसा बोला हुआ था, जहाँ पे 10 पॉइंट, 8 पॉइंट थे शायद। हाँ, तो 2 पॉइंट उसमें से थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, 2 पॉइंट उसमें थे इंटीग्रिटी के, 2 पॉइंट उसमें थे फाइनेंशियल स्केप्टिसिज्म से के रिलेटेड। तो उसमें वो सेंटेंस में वो वर्ड आ रहा था, 2 सेंटेंस में वो एक वर्ड आ रहा था कि इसमें इंटीग्रिटी है, इसमें भी इंटीग्रिटी है। सेकंड और फोर्थ पॉइंट में इंटीग्रिटी है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। तो वो जब आप खुद के नोट बनाओगे ना, तो वहाँ पे आप कंबाइन करके लिख दो। ऑडिट में स्टेप्स तो है नहीं कि आपको सीरियली लिखना है, पॉइंट्स आप लिखने हैं, कैसे भी लिख सकते हो पॉइंट्स को। तो अब जहाँ भी आपको पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स में आपको वर्ड्स की सिमिलैरिटीज दिख रही है, तो आप उसके बकेट्स बना लो कि हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक वर्ड है, इसके रिलेटेड आपके लिए 3 पॉइंट्स हैं। तो जब आप एग्जाम में अगर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था एंड इंटीग्रिटी का कुछ पॉइंट्स थे। तो वो जब आपको वर्ड याद रहता है तो आपको वो सेंटेंस रिकॉल करने में आसानी होता है कि हाँ इसमें ये वर्ड था, तो इसमें कहीं ना कहीं में अगर नहीं भी याद हो रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं फ्रेम करके लिख सकते हो। मैं तो यही करता था, जो एमसीक्यू की बुकलेट आती है ना, अगर मेरे को कोई आंसर याद नहीं आ रहा है और मेरे को उसके रिलेटेड कोई पॉइंट अगर एमसीक्यू में मिल जाता है, तो मैं एमसीक्यू से एज इट इज लाइन उठा के थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करके मैं वही चिप के आ जाता था। इसलिए लगता है कि मेरे को सिर्फ 70 आए हैं, मेरे को थोड़े और ज्यादा भी आ सकते थे। एमसीक्यू के मैंने पेपर का वो क्वेश्चन चिप दिया था डायरेक्ट आंसर। तो वही है, तो अगर आपको वो वर्ड्स याद रहते हैं ना, तो आपको सेंटेंस ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट बकेटिंग मीन्स। SQ3R मेथड। नेक्स्ट कम द SQ3R मेथड। ओके, सो SQ3R मेथड इज एन ऑप्शनल, मतलब अगर आपको निमोनिक्स और बकेटिंग से हो रहा है सब कुछ रिकॉल, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी हो रहा है, तो अगर आपको वापस स्टार्टिंग से करना है सब कुछ, मतलब ये सब नहीं हो रहा है आपसे, तो या तो ये दो यूज करो या SQ3R मेथड यूज करो। एक चीज यूज करो। अगर तीनों आप साथ में यूज करने जाओगे तो इट विल मेक अ मेस। सो SQ3R मेथड। सर्वे, S फॉर सर्वे, S स्टैंड्स फॉर सर्वे, गेटिंग द बिगर पिक्चर। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने जब ऑडिट स्टार्ट किया था, तो मैंने जब सिर्फ मतलब ऑडिट के कंटेंट्स देखे थे, मेरे को ऑडिट स्टार्ट करना नहीं था अभी। मान लो कि मुझे आज ऑडिट की बुक्स आई है, मुझे आज ऑडिट स्टार्ट ही नहीं करना है। मैंने रैंडमली ऐसे कंटेंट्स को ऐसे गो थ्रू कर लिया कि है क्या क्या इसमें। तो आपको उससे क्या होता है कि बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है कि है क्या क्या इसमें। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, कुछ इससे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ है, कुछ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, कुछ बैंक ऑडिट के बारे में है। तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है ऑफ द होल सिलेबस। दिस पॉइंट यू कैन मर्ज विद द फर्स्ट पॉइंट
प्लान योर सिलेबस वाइजली। जब आप ये प्लान करते हो ना, तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है। एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिलना भी चाहिए टू स्टार्ट, बिफोर स्टार्टिंग दैट सब्जेक्ट। वो आपको, जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो आसानी होती है, आपको मतलब सहूलियत मिलती है कि हाँ मैंने एक इसका कंटेंट्स देख रखे हैं, तो कंटेंट्स अगर देख रखे हैं तो मैं इजीली ग्रैब अप भी कर लूंगा इसको। वो मेंटेलिटी का खेल है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर क्यू, क्वेश्चन, टर्निंग हेडिंग्स इनटू क्वेरीज। हाँ, ये टर्निंग टर्निंग हेडिंग्स इनटू क्वेरीज, ओके। हाँ, जैसे मान लो कोई एक टॉपिक है, उसकी मैं एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूँ, व्हाट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? तो ये हेडिंग हो गई, तो सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। मैं जब इंटीग्रिटी के बारे में अगर कुछ पढ़ रहा हूँ, सो मैनेजमेंट शुड कीप द इंटीग्रिटी विद इट्स क्लाइंट्स एंड ऐसा कुछ है सेंटेंस, मान लो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आपको कोई वर्ड स्ट्राइक ऑफ नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज इंटीग्रिटी। क्वेश्चन करो अपने आप से कि ये मतलब इसका कोई कोई ऐसे वर्ड होते हैं कि जो आपको मतलब पूरे सेंटेंस को समझने में कहीं ना कहीं अड़चन क्रिएट करती है। तो अगर आपको कोई ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये क्यों होता है, क्या है ये इंटीग्रिटी, क्या है। उसको गूगल अप करो या कोई भी डिक्शनरी में देखो। मेरे को ऐसे बहुत बार होता था कि यार मेरे को पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है, अचानक से बीच में ऐसा वर्ड आ रहा है कि मतलब पूरा सेंटेंस का फ्लो खराब कर दिया। तो क्वेश्चन करो उसका मतलब क्या है, उसका पूरा सेंटेंस के साथ क्या रेलेवेंस बैठता है, ये यहाँ पे क्यों है, इसको क्यों होना चाहिए यहाँ पे क्या मतलब, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो वैसे करके आप तो क्वेश्चन करो, जो हेडिंग्स है उसको क्वेरीज में निकाल, क्वेरीज करो कि क्यों है ये। उसके बाद में 3 आवर्स, 3 आवर्स में फर्स्ट आता है R1, दैट इज रीड। मैंने बोला व्हाट इज इंटीग्रिटी, तो अब आपको इंटीग्रिटी का जब मतलब समझ आ गया, आपने उसको सर्च किया, जो भी किया डिक्शनरी किया, आपको समझ आ गया, तो अब उसका मीनिंग सर्च करो, उसकी आंसर्स देखो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो कि भाई हाँ ठीक है, मुझे ये समझ आ गया, इंटीग्रिटी का मतलब समझ आ गया, अब ये सेंटेंस में क्या रिलेवेंस रख रहा है, ये सेंटेंस में कैसे कनेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज, उसको उस शब्द को जो है वो सेंटेंस में बैठाने की कोशिश करो। वो बैठा हुआ है ऑलरेडी, बट आपके दिमाग में नहीं है फिलहाल, तो उसको एडजस्ट करो कहीं ना कहीं। फर्स्ट हो गया रीड, तो रीड हमने कर लिया, सीकिंग आंसर्स, उसके आंसर्स निकालो, उसका मतलब निकालो, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग लो कि भाई यहाँ पे क्या रेलिवेंस वो रख रहा है। रिसाइट, अब जब आपको समझ आ गया कि उसका रेलेवेंस क्या है सेंटेंस में, तो अब आप अपने आप को टेस्ट करो कि हाँ ठीक है, अब समझ आ गया, अब एक बार बिना देखे मैं सेंटेंस को बोलने की ट्राई करता हूँ, क्या मैं फ्लो पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को समझ आया है कि नहीं, मैंने अच्छे से पढ़ा है तो मुझे जरूर रिकॉल होगा। तो एक बार बिना देखे, मतलब हाथ रख लो बुक पे या जैसे भी, आंखें बंद करके अब बिना देखे वो सेंटेंस बोलने का ट्राई करो। हर हर चीज में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे मतलब आपको डिफिकल्टी आ रही है, कोई टॉपिक अगर ग्रैब अप नहीं हो रहा है, किसी में ज्यादा पॉइंट्स है, किसी में बकेटिंग या फिर वो निमोनिक्स नहीं यूज करो, मैं बोला था ना, या तो दो चीज या वो सिंगल टेक्निक यूज करो, तो वैसे यूज करो। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, तो फिर आप रिसाइट करो, रिसाइट करके ट्राई करो। उसको आप जब बिना देखे ट्राई करोगे ना, तो आपको फिर वो लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा है, भले ही थोड़ा देरी से हो रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। जब आप उसको देख के 2 बार वापस करोगे ना, तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बेट, मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये। द थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको अच्छे से रिकॉल हो रहा है, आपकी मेमोरी अच्छे से टेस्ट हो गई, आपको मेमोरी में बैठ गया एक बार के लिए, मैंने ये नहीं बोला कि आपको पूरे मतलब एग्जाम टाइम तक बैठा हुआ रहेगा, जस्ट व्हेन, जस्ट फॉर द टाइम व्हेन यू आर रीडिंग, उस टाइम अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया ना, तो कहीं ना कहीं आपके माथे में स्टोर हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये चीज मैंने बिना देखे बोली है, ठीक है मैं रिकॉल कर लूंगा जैसे तैसे। अगर आपको रिकॉल नहीं आ रही, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप, अगर आपको फर्स्ट टाइम में रिकॉल नहीं हो रहा, तो आप एग्जाम के टाइम में क्या करोगे, रिकॉल। सो रिकॉलिंग इज द मोस्ट, मतलब मेमोरी आपकी टेस्ट होनी चाहिए, मेमोरी में वो चीज बैठनी चाहिए। रिव्यू, R3, कंसोलिडेटिंग एंड मॉनिटरिंग। ये तो कहीं ना कहीं टेक्निकल वर्ड आ गया, थोड़ा ऑडिट वाले समझ सकते हैं। तो कंसोलिडेटिंग एंड मॉनिटरिंग, तो जैसे आपने हर पॉइंट का वो समराइजेशन निकाल लिया एक टॉपिक का, मैंने जैसे बोला ये SQ3R मेथड यूज करके। तो जैसे हर पॉइंट तो नहीं बोलूंगा जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, ऑब्वियसली उसी पॉइंट में। तो जब आप उस टॉपिक को समराइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने एक पॉइंट बिना देखे बोला, तो जब आपके सारे पॉइंट बिना देखे हो रहे हैं, तो ट्राई वंस की होल टॉपिक आपका अगर बिना देखे, या अगर उसको बिना देखे अगर आप लिख सकते हो, तो और भी बेटर है। क्योंकि व्हेन यू राइट ना, वो आपके हाथ से निकला हुआ रहता है,
वो आपकी एग्जाम में इमेज बनती है कि हाँ ये चीज मेरे लिखी हुई है तो मुझे याद आना चाहिए, और वो याद आएगा, डेफिनेटली आएगा। मेरे को तो बहुत बार आया है। ओके। कंसोलिडेटिंग एंड मॉनिटरिंग, हाँ तो उसको फिर लास्ट में कंसोलिडेट करो कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे, इस इसके रिलेटेड इसमें पॉइंट्स थे, और जिसमें मैंने मेमोरी टेस्टिंग की थी वो क्या मेरी वापस रिकॉल हो रही है, उसको एक बार और रिकॉल करके देखो। वो नहीं होगी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मतलब मेरे को जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो नहीं होती है फर्स्ट टाइम में। तो आपको होता है थोड़ा टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट एक टॉपिक कवर करने में, छोटा से छोटा 15 से 20 मिनट। हाँ, जिसमें 5 से 7 पॉइंट वो आपको लगता है, तो ठीक है, वो दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपका एक एक पॉइंट सिंगल सिंगल अगर रिकॉल हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर पूरा नहीं भी हो रहा है तो। बट ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई करो कि अगर पूरा हो रहा है कि नहीं। पूरा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहा है तो जितने पॉइंट्स हो रहे हैं उतने रिकॉल करो। अगर जो पॉइंट्स नहीं रिकॉल हो रहे उसमें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले उसको कर चुका है रिकॉल। ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स आपके एक साथ रिकॉल नहीं होने वाले ना, मुझे भी पता है। तो ठीक है, उस पर बटन लेने का नहीं है ज़्यादा, कि अगर 5 में से अगर 3 पॉइंट भी हो रहे हैं तो ठीक है, वो बाकी 2 पॉइंट कहने के फ्लो फ्लो में आ जाएंगे। और फिर से बोनस टिप, डोंट ओवर रिलाई ऑन एनी टेक्निक। तो दिस वाज SQ3R मेथड, जो मतलब ठीक है, जिसके ऊपर फर्स्ट दो जो है वो बेस्ट है, अगर आप उसको कंबाइन करके यूज करते हो तो देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस टू। और फिर भी अगर आपको ज्यादा न्यूमोनिक्स वगैरह याद नहीं रहते, एंड न्यूमोनिक्स की एक और चीज मैं बताऊंगा कि अगर आपके मतलब लॉजिकल न्यूमोनिक्स नहीं बन रहे हैं तो ट्राई टू यूज वियर्डेस्ट निमोनिक्स, जो मतलब आप बना सकते हो। जैसे मैंने जब शुभम सर से क्लासेस ली थी तो वो तो वियर्ड निमोनिक्स ही बनाते थे। तो वो जब आप वियर्ड निमोनिक्स बनाते हो ना तो वो आपको ज्यादा याद रहते हैं, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी है, ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स निकाल रखे हैं, जो मतलब सिर्फ आपको किसी को दिखाना नहीं है कि यार मैंने ये निमोनिक्स बनाया है, वो खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद को मेमोरी में फीड करने के लिए आपने वो निमोनिक्स बनाया है। हाँ, तो मेरे को याद है, मैं शुभम सर ने नहीं कराया था, मैंने खुद जो एक ही टॉपिक्स याद नहीं हो रहे थे, मैंने उनमें एक दो गाली के निमोनिक्स भी बनाए थे। तो वो चीज़ साइकोलॉजिकली याद रह जाती है, क्या करें उसका। तो वियर्डेस्ट निमोनिक्स यूज करो बनाने का, एंड दैट विल बी विथ यू टिल द एग्जाम डेट। अगर आप उसको एक बार भी पढ़ोगे तो आपको एग्जाम डेट तक रहेगा, क्योंकि वो बहुत वियर्ड चीज़ है, एज सिंपल एज दैट। ओके। हाँ। नेक्स्ट कमिंग टू एग्जाम क्वेश्चंस। अब सर हमने कोर्स तो देख लिया, कोर्स को अप्रोच कैसे करना है वो भी देख लिया, एंड कैसे टाइम मैनेज करना है, कब पढ़ना है ऑडिट को, सुबह पढ़ना है शाम को पढ़ना है। देखो मैं सुबह ये टाइम के बारे में मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। जब टाइम की बात आती है ना तो ऑडिट में मैं जब क्लासेस, हाँ क्लासेस लिया था, उससे पहले मैं सोचा था कि यार छोड़ो क्लासेस कौन लेगा, ऑडिट है खुद पढ़ लेंगे, थ्योरी है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल वो डाउट रहती नहीं है ऑडिट में, खुद कर लेंगे। तो मैं लेके बैठा ऑडिट एक दिन, मतलब खुद से मॉड्यूल लेके। मेरा कंटेंट्स के बाद मैंने कंटेंट्स देखा, कंटेंट्स के एक पेज बाद मैंने खोला, मतलब पूरा ब्लैंक आउट, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगला दिन लेके बैठा वापस उसको, एक पैरा समझ आया, फिर वापस ऐसे झोल हो गया पूरा। तो फिर आई थॉट कि यार ऐसे तो टाइम वेस्ट करने से नहीं होगा, लेट्स टेक कोचिंग। तो शुभम सर से कोचिंग ली, एंड शुभम सर की क्लासेस परचेज करी। क्लासेस परचेज करने के बाद भी मैंने जब क्लासेस स्टार्ट करी फिर भी मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, क्योंकि आई वॉज डूइंग ऑडिट। कहीं ना कहीं वो खाने का टाइम होता है ना 2 बजे, तो 2 बजे के बाद में, क्योंकि हम जब इंटरमीडिएट में था ना तो मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रखा था। तो ऑफलाइन कोचिंग का टाइम होता था सुबह सुबह 7 से दोपहर के 1 डेढ़ खाने के टाइम तक, और फिर वापस 3:30 4 बजे के बाद से क्लासेस स्टार्ट। तो वो जो 2 से 4 के बीच का टाइम होता है ना, मैं कभी कभी उसमें ट्राई किया था ऑडिट करने का। ज्यादा टाइम नहीं किया, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 4 बार किया हूँ, मैं नहीं किया, ज्यादा नहीं होता था ना खाने के बाद, तो किया नहीं मैं ज्यादा। तो मैं वही सेम चीज ले रहा हूँ। वो अब तो कंसाइज वाले नोट्स आ गए शुभम सर के, मैं वो लेके बैठा, वो भी नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, मम्मी को बोला, सर को बोला, पहले मम्मी को बोला ऑब्वियसली, फिर सर को भी बोला कि उस टाइम ऑडिट की फैकल्टी थी ही नहीं हमारे यहाँ कोचिंग में, अभी तो है फैकल्टी। तो उस टाइम पहले मम्मी को इसीलिए पूछा, तो मम्मी बोली टाइम के साथ ट्राई करो, मे भी तुम खाने के बाद ट्राई, अगर ऑडिट पढ़ते हो तो। वो खाने का टाइम क्या रहता है, नींद आने का टाइम रहता है या खाने में अक्सर गर्मियों में दही ये सब खा लेते हो, छाछ वगैरह पी लेते हो, तो वो नींद ज्यादा आती है। तो कुछ भी खाओ नींद आती है दोपहर के बाद में। एंड फिर मैंने मम्मी के बोलने के बाद ये ट्राई किया,
थोड़ा टाइम इंप्रूव करने का ट्राई किया। ऑडिट को दोपहर में करना छोड़ा, शाम को तो मैं करता ही नहीं था, खैर सोने के टाइम से पहले भी नहीं करता था। एंड सुबह करना स्टार्ट किया। सुबह जब हमारी सुबह हमारी सबसे पहले अकाउंट्स की क्लास होती थी, वो अकाउंट्स का कोर्स खत्म हुआ तो मैं वापस ऑडिट को लिया 7 से 10। वहां भी हो रहा था, वहां अच्छा हो रहा था मेरा ऑडिट। बट मेरे को फिर भी कहीं ना 80% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी नहीं निकल रही थी मेरी, 75 to 80%। तो फिर मैंने जब फिर एग्जाम आ गया, ऑडिट में हुआ नहीं तो मैं ग्रुप 2 दिया ही नहीं, मतलब दिया था, क्लियर नहीं हुआ मेरा ग्रुप 2। फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में, दैट इज सितंबर, हाँ September 24, मैंने उसमें जब ऑडिट के लिए, उसमें स्पेसिफिकली मैं यूनिट 2D दे रहा था। तो मेरे को ऑडिट में 100% एफिशिएंसी करनी थी कि भाई हाँ मेरे को पूरा चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा दिमाग लगना चाहिए। तो आई वाज लाइक कि मम्मी, मेरे को एक दिन ऐसे ही जोश चढ़ा कि मम्मी 4 बजे उठा देना, 3:30 का अलार्म लगा रहा हूँ, 4 बजे उठा देना। तो मेरे घर पे तो ऐसा है कि बोलने के बाद तो दे विल, किसी की भी नहीं सुनेंगे, वो बस करेंगे। तो कभी कभी पापा को बोलता था, पापा तो पानी फेंक के उठाते थे कि तूने बोला अब उठ। तो ठीक है, उठता था, ऐसे आदत हो गई, उठते 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 उठते, रोज रोज उठते उठते, कभी 3:30, कभी 4, कभी पौने 4, कभी सवा 4 ऐसे उठता था, मतलब 4 के अराउंड उठ जाता था। तो 4 से 7 उस टाइम थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके, और उस टाइम उठ जाता था। और उस टाइम जो लेक्चर्स होते हैं ना, मैंने लेक्चर्स नहीं देखे उस टाइम कभी। मैंने जो सेल्फ स्टडी वाला चीज होता है ना, मैं वो उसी टाइम करता था। जो लेक्चर्स हैं वो बाद में भी देखे जा सकते हैं। लेक्चर्स में अगर आप 70% एफिशिएंसी रखोगे तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि लेक्चर्स के बाद आप खुद खुद से भी रीडिंग लगाते हो, उसके बाद 2-3 रिविजन भी हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं दिमाग। वो सेल्फ स्टडी के टाइम आपका कब रहता है वो डिपेंड करता है मोस्ट। तो इसीलिए मैं सेल्फ स्टडी का टाइम जो था, जो मैं बोलता बोलता हूँ ना कि नया कंटेंट कंज्यूम करना, वो सुबह के टाइम पे करता था। 4 से 7 के बीच में ऑलमोस्ट 3 घंटे होते थे ना, उसमें 2.5 घंटे की एफिशिएंसी मान लो, कभी झपकी आ गई, नैप्स आ गए, तो ठीक है, वो नॉर्मल है, वो सुबह उठोगे तो आएगा। तो वही, और इसी टाइम पे ऑडिट करो, मतलब नया कंटेंट इसी टाइम पे कंज्यूम करो। क्लासेस पूरा दिन पड़ा है यार, कभी भी हो जाएगी। बस वो 2 घंटे के लेक्चर चला के छोड़ने हैं, उसमें 100% नहीं एफिशिएंसी आएगी। तो हाँ, ऑडिट सुबह करो। अब आती है कॉन्करिंग एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम में कैसे टैकल करना है, सब कुछ हो गया। अब बारी आती है एग्जाम की। जब एग्जाम में जाते हो ना, तो एग्जाम के एक दिन पहले लगता है कि यार ठीक है, कर तो लिया बट मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है। वो थ्योरी के सब्जेक्ट के साथ होता है, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो वो आपके साथ होगा। अब एग्जाम में जब आप जाते हो तो आपका जो 1.5 डेज का शेड्यूल है वो आएगा आगे। उससे पहले जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है, वो आपको कैसे डील करना है। सबसे पहला, इसका भी एक नियमानिक बना रखा है मैंने। अंडरस्टैंड, यू फॉर अंडरस्टैंड, बी फॉर ब्रेक डाउन, एस फॉर स्ट्रक्चर, टी फॉर टाइम। पहले आपको जो अंडरस्टैंड वाला चीज है वो आपको पहले 15 मिनट में करनी है। जो जो भी आपको जब भी पेपर मिलता है तो आपको चीजें देखनी है, फर्स्ट क्वेश्चन हटा दो। पहले 15 मिनट में फर्स्ट क्वेश्चन देखना ही नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेगा भाई, वो ऐसा ऊट पटांग क्वेश्चन ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा वो कहीं ना कहीं फंसाएगा आपको कि हाँ यहाँ कंसेप्ट फंस रहे हैं, यहाँ पे रिकॉल नहीं हो रहा है चीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप छोड़ दो पहले 15 मिनट। जो पहले 15 मिनट में करना है ना, वो सेकंड से स्टार्ट करो, सेकंड से लेके 6। वो 5 क्वेश्चन आप रिव्यू करो एंड सिलेक्ट द मोस्ट, मतलब आपको जो सबसे अच्छा से आता है, या 2 आता है या 3 आता है। ऐसा नहीं कि आपको 2 में से एक पार्ट आ रहा है, 3 में से एक पार्ट आ रहा है, 4 में से एक पार्ट आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कर। यू कांट राइट ऑल द क्वेश्चन सब पार्ट्स विद कंबाइनली विद वन क्वेश्चन, राइट। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है आपको उसमें से एक नहीं आए बट बाकी 3 आ रहे हैं, तो इट कम्स इन अ बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन। तो वो आप अटेम्प्ट करो सबसे पहले। और क्वेश्चन को देखो कि भाई वो क्वेश्चन मांग क्या रहा है, हर एक क्वेश्चन से पूछो। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, खास करके एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में मैंने ये किया है कि ऑडिट में जो केस स्टडीज आती है ना एमसीक्यूज में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ केस स्टडी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बड़ी बड़ी केस स्टडी, 3-3 4-4 पेज की केस स्टडी। तो रीड द रिक्वायरमेंट, मतलब उसमें जो नीचे 5 अंडर अंडर गिवन एमसीक्यूज है उसके मतलब क्वेश्चंस पढ़ो। हो सकता है वो आपके केस स्टडी से रिलेटेड ना भी हो, इट्स जस्ट अ बेसिक थ्योरी कंसेप्ट होता है वो। मेरे साथ हुआ था, वो 10 मार्क का पूरा थ्योरी कंसेप्ट था, उस केस स्टडी से कुछ रिलेटेड नहीं। तो रीड दैट क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन में चाहिए क्या। ताकि जब आप वो क्वेश्चन, अगर वो रिलेटेड भी है तो वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ के रखे हो, तो वो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको क्लिक करेगा कि हाँ इसके रिलेटेड यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे आंसर हो सकता है इसका। तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर गोइंग थ्रू द होल क्वेश्चन। लोग बेवकूफी ये करते हैं कि वो 2-2 3-3 मार्क क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, खास करके एमसीक्यूज में।
केस स्टडी गो थ्रू कर लेते हैं इतनी लंबी लंबी 4-4 पेज की, फिर वापस कहीं भटक जाते हैं बीच में, वापस स्टार्ट करते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं, ऐसे कर करके 3-4 बार एमसीक्यू वो केस स्टडी पढ़ लेते हैं। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आप हो रहे हो, आप वापस स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज जस्ट टाइम कंज्यूमिंग। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, हो सकता है आपका रिलेटेड ना हो वो केस स्टडी से। नेक्स्ट कम्स ब्रेक डाउन। दिस इज फॉर थ्योरी स्पेशली, ब्रेक डाउन कंसेप्ट, जहाँ पे मतलब कि जैसे अभी तो ज्यादा हाई 6-7 5 मार्क्स के हाईएस्ट आते हैं शायद क्वेश्चन। पहले 8 मार्क का क्वेश्चन आता था। तो जब 8 मार्क का क्वेश्चन आता था, दैट क्वेश्चन डिमांडेड कि हाँ आपको क्वेश्चन के इतने रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को करो, ब्रेक डाउन करो, क्या क्या पूछा है उसने। 4 चीज पूछी है तो चारों चीज का वो एक एक सिंगल वर्ड लिख के रख लो कि इसके बारे में पूछा है हर क्वेश्चन के आगे। तो ब्रेक डाउन करो चीजों को, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करोगे तभी उसको मतलब पार्ट वाइज आंसर आप कर पाओगे, नहीं तो आप सब मिक्सअप कर दोगे, सारे पार्ट मिक्सअप कर दोगे, फर्स्ट का सेकंड में डाल दोगे, सेकंड का फर्स्ट में डाल दोगे। तो कितने रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा है, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, 4 चीज, कितनी चीजों में क्वेश्चन को पूछा है, वो ब्रेक डाउन करो। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो पता ही है, लॉ लॉ और ऑडिट में कॉमन रहता है। सबसे पहले जो मतलब स्टैंडर्ड होता है, जो रॉ एक्ट होता है, वो हम लोग कोट करते हैं, लॉ में सेक्शंस कोट करते हैं, ऑडिट में स्टैंडर्ड्स कोट करते हैं, जो बेयर एक्ट बोलते हैं। एंड बीच वाला इज आपका फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द केस। क्वेश्चन क्या बोलता है और क्वेश्चन में मतलब क्या, अगर वो पूछ रहा है कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, क्वेश्चन में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो वो चीज आपको फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट में लिखनी है, जो कि बीच का बॉडी हो गया। लास्ट कंक्लूजन इज योर डिपेंडिंग अपॉन योर, मतलब जो आपके फर्स्ट वाले पार्ट यानी कि रॉ एक्ट पे बेस्ड होना चाहिए लास्ट का कंक्लूजन। आप किस बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हो वो चीज आपकी रॉ एक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप सिंपली ऐसे लिख के आ जाओगे, द व्यू ऑफ दिस एक्स 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 ऑडिटर इज रॉन्ग, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, उसको आपको रीजन स्टेट करना पड़ेगा कंक्लूजन में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। कंक्लूजन कैरीज द हाईएस्ट मार्क्स। मैं बोलूंगा हाईएस्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं हाईएस्ट भी कैरी करता है, बट बराबर रहता है। फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स जस्ट कैरी 10% और 15% ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। वो मैटर नहीं करता, अगर आप नहीं भी लिखो तो ठीक है, अगर आपने अच्छे से रॉ एक्ट और वो कंक्लूड करके रखा है क्वेश्चन को, तो इट डजेंट मैटर कि आपने फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स दिया है कि नहीं। तो आपका कंक्लूजन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका कंक्लूजन देखते ही उस आंसर का शॉर्ट एंड क्रिस्प मतलब निकल जाना चाहिए कि आपने क्वेश्चन किस बेसिस पे आंसर किया है। तो आपका स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रक्चर में उल्टा पुल्टा करोगे तो नहीं मिलेगा, वो स्ट्रक्चर बैठेगा नहीं ना, स्ट्रक्चर नहीं बैठेगा, वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। टाइम, टाइम तो है ही है, टाइम अच्छे से मैनेज करना है एग्जाम में। कोई भी पेपर हो उसमें पहला जो 15 मिनट है, दैट इज द गेम। उस 15 मिनट में मैंने ऑडिट का क्या किया था, जैसे उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मतलब जो मैंने नोट से पढ़ा था ना, मैंने खुद के जो नोट्स बनाए थे उसमें से मैंने बोला था ना बकेटिंग कर रखी थी। तो बकेटिंग वाले चीज मेरे को वहां काम आई एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पूछा था कि मेंशन द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस दिस दिस। तो ठीक है, मेरे को किसके बारे में पूछा वो समझ आ गया, तो मेरे को रिकॉल हो गया था कि इसके बारे में तो ये 4 वर्ड्स थे जिसके बारे में ओवरऑल क्वेश्चन बना हुआ था। 2 पॉइंट्स इसके थे, 4 पॉइंट्स इसके थे और 1 पॉइंट इसका था। तो मेरे को जब वो बकेटिंग कर रखी थी तो मुझे वहां पे याद आ गया, तो मेरा टाइम से हो गया। मैंने पहले 15 मिनट में वो 4 जो शब्द थे जिससे पूरा क्वेश्चन का सेंस बन रहा था, मैंने वो वहां पे नोट डाउन कर लिया कि अगर मैं क्वेश्चन बाद में भी देखूंगा ना तो भूलूंगा नहीं। होता है ना कि हाँ आपको पहले देखने से याद आ रहा है, बाद में जब आप लिखने जाते हो तो वो आपको चीज याद नहीं आती। तो अगर आपको याद आ रहा है स्टार्टिंग में तो आप वहाँ पे लिख के रखो, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि एग्जाम में लिख नहीं सकते, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से लिख नहीं सकते, ये सब सब बकवास है, कुछ नहीं होता, लिखो। मतलब ठीक है थोड़ा कम लिखो, स्मॉल लिखो, ताकि आपको बगल वाले को विजिबल नहीं हो, मेन उसी के लिए चिक चिक होती है एग्जाम में। छोटे छोटे लिखो अक्षर। पॉइंट आउट जैसे एमसीक्यूज में तो एकदम भी अलाउड नहीं है, पॉइंट्स करो, जो आपको सही लग रहा है उसमें पॉइंट्स लगाओ, वो आपको बाद में खुद के पॉइंट्स खुद को दिखेंगे। तो आपको छोटे छोटे साइड में लिख लो कि हाँ ये वर्ड्स है जिससे मेरे को पूरा आंसर रिकॉल होना है, तो वो आपका टाइम बचाएगा जब आप क्वेश्चन लिखोगे। एंड नेक्स्ट कम्स रिसोर्सेज। हाँ ये हो गया यूबीएसटी, ये ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक स्टेप बाय स्टेप था जो मतलब अप्रोच होता है एग्जाम क्वेश्चंस करने का, बस वही था नॉर्मल, सब कोई टेक्निक नहीं था इसमें। एंड यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। मतलब ऑडिट ज्यादातर थ्योरी सब्जेक्ट में, मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरा एक है दोस्त यहाँ पे बैंगलोर में, वो मतलब खाली रिसोर्सेज कलेक्ट करने में लगा हुआ है कि मेरे पास जितने ज्यादा चीजें होंगी पढ़ने के लिए मेरे को उतना मतलब रेंज मिलेगा पढ़ने के लिए।
मैं बोला यार तू जो है वो तो पढ़। एक उसके पास कम से कम 6 से 7 फैकल्टी के मतलब हैंड रिटन नोट्स हो गए, उनकी बुक्स होगी, आईसीए की मॉड्यूल अलग से है। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई क्या कर रहा है तू, जो है वही नहीं पढ़ा जा रहा, तो खाली कलेक्ट करे जा रहा है। अल्टीमेटली काम तेरे खुद के हैंड नोट्स ही आने हैं। कितने ही तू लेके रख ले, किसी के भी कितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मंगा ले, वो नहीं काम आएगा। तो रिसोर्सेज इज द मेन थिंग। जब आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, किस मेथोडोलॉजी में पढ़ रहे हो, क्या उसके है स्टेप्स हैं, मतलब किस बेसिस पे वो समराइज्ड है, पॉइंट वाइज है, वर्ड वाइज है, वो चीज़ आती है उसमें। तो जो लोग खुद से स्टडी करते हैं वो आईसीएस स्टडी मटेरियल, वन एंड द ओनली भगवान है आईसीएस स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट है ऑनलाइन, जो मतलब क्लासेस लेते हैं उनके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज, चार्ट्स, माइंड मैप्स एंड पॉकेट रिविजन्स। दीज आर दोज थिंग्स जब आपके कोर्स खत्म होने में खत्म होने के बाद होता है। चार्ट्स एंड माइंड मैप्स आप कहीं ना कहीं चैप्टर खत्म होने के बाद आप रेफर कर सकते हैं। मतलब आपने लेक्चर देख लिए, खुद से एक बार ब्रॉड से कंसेप्ट एक बार ओवरव्यू कर लिया, गो थ्रू कर लिया, चीजों चीजें दिमाग में बैठ गई। अब जो बच्चे हैं, चार्ट्स एंड माइंड मैप से हो जाएगा कि आपको इतना डिटेल में रिवीजन नहीं करना, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप इतना कर सको। एक एक से दो बार पूरा ब्रॉड में रिवीजन करना इज बेस्ट। उसके बाद आप यूज करो चार्ट्स माइंड मैप्स, कि वो आपके माइंड की टेस्टिंग करते हैं, आपको कितना याद है। उसमें शॉर्ट में दिया होता है, तो आपको माइंड आपका कहीं ना कहीं बड़ा आंसर रिकॉल करता है उस चीजों को देख के, कि मैं हाँ मेरे को ये पॉइंट दिख रहा है माइंड मैप में, या फिर चार्ट में ये चीज दिख रहा है, उसके रिलेटेड क्या थी मुझे याद आ रहा है, या धीरे धीरे आएगा भी आपको याद। सारी चीजें नहीं आए बट आपको धीरे धीरे याद आएगा। तो रीड दोस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, चार्ट्स माइंड मैप्स एंड पॉकेट रिवीजन इज लाइक एग्जाम का जो आप रिवीजन करते हो ना 1.5 डेज वाला, उससे जस्ट एक रिवीजन पहले जो आप रिवीजन करते हो, गो थ्रू पॉकेट रिवीजन्स। वही पॉकेट रिवीजन मतलब जहाँ भी आप अगर अवेलेबल नहीं हो पढ़ाई के लिए, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कोई भी मतलब अनयूटिलाइज टाइम है जो आपका मतलब ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, तो यूज दैट इन रिवाइजिंग द थ्योरी ऑफ लाइक ऑडिट एंड लॉ। उसके जो पॉकेट बहुत सारे पॉकेट रिविजन होते हैं, मतलब बहुत सारे फ्री अवेलेबल है गूगल पे। आईसीआई का खुद का भी पॉकेट रिविजन नोट्स है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। तो यूज दैट पॉकेट रिविजन नोट्स, एटलीस्ट कुछ नहीं करने से बेटर है। एटलीस्ट अगर 20% भी जा रहा है तो किसका है, वो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। ये रिविजन्स के लिए ये सब है। एंड रिविजन वगैरह होने के बाद जो हम एमटीपी करने बैठते हैं, एमटीपी आरटीपीज आर द मतलब उससे आपको सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले। आपको एक राइटिंग हैबिट होनी चाहिए कि भाई आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कैसे कैसे क्वेश्चन टैकल कर रहे हो, एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको अगर एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको उसके ऊपर अटक के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को देखा है मैंने, वापस केस स्टडी पढ़ते हैं, उस वापस आंसर को वापस रिकॉल करते हैं, वो टाइम इनका उन्हीं में चला जाता है। मैंने ब्लंडर किया था, मैं एक बताता हूँ इन सबसे हट के। मैंने जब इंटरमीडिएट का टैक्स एग्जाम दे रहा था, तो रुद्र है ना, हाँ, रुद्र अग्रवाल है मीटिंग में, वो मेरे जस्ट पीछे ही बैठा था। तो क्या हुआ था, जीएसटी टैक्स में दो पार्ट्स होते हैं ना, जीएसटी और इनकम टैक्स। तो मैंने क्या करा था, अलग अलग कॉपीज मिलती है ए और बी, ठीक है, पार्ट ए इज फॉर इनकम टैक्स एंड पार्ट बी इज फॉर जीएसटी। तो मैंने क्या करा, वो दो अलग कॉपीज को मैशअप कर दिया, मिक्सअप कर दिया। जीएसटी का आंसर मैंने लिख दिया इनकम टैक्स की कॉपी में। जब मैंने पहले दो क्वेश्चन यानी कि 14 मार्क और 8 मार्क, 22 मार्क का जब मैंने लिखने के बाद जब वो टीचर आई साइन करने, तो उसने देखा, मैंने जब कॉपी पलटी आगे, तो आगे मैं देखता हूँ कि यार यार ये तो इनकम टैक्स की कॉपी है और इसमें मैं जीएसटी के क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं वहीं पे पैनिक हो गया, मेरा वहीं पे मोरल डाउन हो गया, गया मेरा ग्रुप। अब नहीं क्लियर हो पाएगा, यहाँ पे मैं 20 मार्क का लिखा हूँ वो भी 1 घंटे में, तो मैं कैसे करूंगा। फिर उसको वापस काटा, थोड़ा कूल डाउन किया, थोड़ा बहुत पानी वानी पिया, थोड़ा रुद्र से बात की ऐसे ही पीछे मुड़ के कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है। तो ठीक है, वापस स्क्रैच से स्टार्ट किया, 1 घंटा चला गया, कोई इश्यू नहीं था। इश्यू था ऑब्वियसली, बट ठीक है, अब उपाय नहीं है, आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गलत कॉपी में लिख के गलत चीज सबमिट कर दोगे ना, तो आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता है, उसका रिजल्ट रह जाएगा। तो मैंने उस चीज को काटा, 22 मार्क वाली चीज को पूरा काटा, जितना लिखा हुआ था उस चीज को, मतलब 20 से 25 मिनट में वापस नोट डाउन किया इनकम टैक्स की कॉपी में। तो 22 मार्क में वहां लिखा। हम देखता हूँ 1.5 घंटे में मेरा 22 मार्क का ही हुआ है, मेरा और वहां पे दिमाग खराब। तो ठीक है, अब जैसे हुआ है जो हो गया, कर क्या सकते हैं। एंड उसके बाद जो 1.5 घंटा का था, उसमें मैं हर एक क्वेश्चन के बाद, हर एक एक क्वेश्चन के बाद चेक कर रहा था कि मैं सही कॉपी में लिख रहा हूँ कि नहीं। जिसमें खास करके जिसमें दो सेट्स होते हैं ना, उसमें आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है कि
अगर आप सही कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप गलत कॉपी में लिखोगे तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। यही वाली बात है। तो और कॉपीज भी लिमिटेड होती है एग्जाम में। उस एग्जाम में जहाँ तक मेरे को याद है 5 से 6 जन ये गलती कर चुके थे, और मेरे को तो मम्मी स्पेशली, मम्मी ने घर से बोला था कि यार देख, कॉपीज देख के रखना और लिखना भी ढंग से, मतलब सही कॉपी में सही आंसर लिखना। तो मैंने ब्लेंडर कर दिया। ठीक है। जब रिजल्ट आया तो मेरे को कितना आया था, 54 या 55 आया था आफ्टर डूइंग दैट मिस्टेक। उस टाइम रिग्रेट होता था कि यार अगर अच्छे से सही कॉपी में लिखता था तो एग्जामेशन कहीं नहीं जा रहा था, 70 टेक्स्ट में भी आता, ऐसे ही मैं सेमिनार ले रहा होता टेक्स्ट पे भी। एंड ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, जो हो गया हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, बैक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे आपका मतलब वेटेज रहता है 10 to 15% एग्जाम में, ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है। पूरा कोर्स करने के बाद 2-3 रिवीजन होने के बाद आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। उसमें आपका कितना आ रहा है, मतलब 40 50 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, वेल मोर देन एनफ है वो। क्योंकि मैंने जब मॉक टेस्ट दिया था तो मेरा एक में 43 आया था, जहाँ तक मेरे को याद है, और एक में 65 कुछ आया था। तो ठीक है, मॉक टेस्ट में हमेशा आपके कम ही आते हैं कंपेरेटिवली। व्हेन यू गो फॉर एग्जाम्स तो आपको रहता है कि हाँ मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, ऐसे जाएगा एग्जाम। पीवाई क्यू करो, इतना कोई वेटेज है नहीं, 10% मान के चलो, कभी नहीं भी आता है, कभी आता है। लास्ट स्लाइड, अब ज्यादा कुछ है नहीं, और सब ऑडिट हो गया, सब कुछ कर लिया। अब 1.5 बात आती है 1.5 डेज की, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो 1.5 डेज इन द सेंस आपके पास 36 आवर्स है, फर्स्ट 12 आवर्स है, नेक्स्ट 12 36, अब 41 आवर्स है आपके पास। नेक्स्ट डे 11 बजे तक मान के चलो, तो एग्जाम डे के दिन 41 आवर्स है। अब उसमें से आप 24 आवर्स इफेक्टिव निकाल सकते हो कि नहीं, वहां पे आपके काम आते हैं ये खुद के बनाए हुए नोट्स। जब आपको मतलब अपने नीटली वो नोट्स बनाए रखे होते हैं ना, तो आपको वो इफेक्टिवनेस आती है कि भाई 1.5 डेज में मेरा आराम से कोर्स खत्म होने वाला है। और अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई सॉरी कोई अगर चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो रिफर करो उसका, जो आजकल सिंगल सिंगल चैप्टर मैराथन आते हैं, वीडियोज आते हैं 30-30 40 मिनट के, उसको रेफर करो। अगर आपके खुद के नोट से नहीं हो रहा है कोई चैप्टर, तो जहां तक हो रहा है खुद के नोट से करो, क्योंकि वही वर्डिंग्स आपको याद आनी है। तो वही है, 24 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी निकालो। 41 आवर्स रहते हैं, उसमें से आप मान लो कि 8 और 4 12 घंटे सोते हो। 41 में से 12 गए, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही कम कर दिया। हाँ नहीं सही है, 41 में से 12 निकालो, बचे 29। और दिन के 5 घंटे इधर उधर के निकाल लो, खाना पीना नहाना धोना बाकी सब। 24 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी निकालो, मतलब 1.5 दिन में से एक दिन आपको इफेक्टिव स्टडी निकालना ही पड़ेगा। वहां पे अगर आपको 1-2 घंटा का स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट नॉट लेस देन 6 आवर्स, ओके, 6 आवर्स इज मस्ट। आपका एग्जाम का जो टाइम है ना, वहां पे आपको इफेक्ट करेगा ये चीज। आपका माइंडसेट वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है अगर आप नींद अच्छी नहीं लेके रखे हो। वो मेरा जब मैंने ग्रुप 2 दिया था ना स्टार्टिंग में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 स्टार्ट में, तो वहां पे मेरे को ये चीज समझ आई कि आपका माइंडसेट कमजोर हो जाता है अगर आपने पूरी नींद नहीं ले रखी है तो 24 आवर ऑफ इफेक्टिव स्टडी निकालो। कोशिश करो निकालने की, 22 23 21 निकले तो ठीक है, हो सकता है हो जाएगा। वही है, रिव्यू योर हैंड रिटन नोट्स एंड समरी नोट्स एंड फोकस ऑन रिवाइजिंग कोर कंसेप्ट, स्पेशली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड हाई वेटेज चैप्टर्स। मतलब कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि है बहुत बड़े बड़े हैं, बट उनका वेटेज नहीं है। जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमारे था चैप्टर नंबर 5, 50 पेज का चैप्टर था, मतलब समराइज वे में बोल रहा हूँ, 50 पेज का समराइज चैप्टर था। जो मैंने खुद के नोट बनाए थे ना, उसमें समराइज वे में 50 पेज का बना था। और वो असल में मॉड्यूल में कितना था, 200 250 पेज का था। कितने मार्क्स का था, 10। मैं वो चैप्टर कंप्लीट छोड़ के गया, कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज का ना। वो वो 10 मार्क्स आपका कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, वो देखो। 10 मार्क्स, उधर मार्क्स को मत देखो, उधर टाइम देखो। उस 10 मार्क्स को जब आप कवर करने जाओगे, उतने में आप 20 मार्क्स के कवर कर लोगे। 250, अगर 100 पेज के 2 चैप्टर आप कवर करते हो, तो आपके 20 मार्क्स वहाँ सिक्योर हो गए ना। एंड यहाँ पे आप करोगे तो 10 मार्क्स ही सिक्योर होते हैं। तो वो थोड़ा वेटेज वाइज ऐसे देखना पड़ता है कि हाँ पहले कौन सा करना है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑलवेज ऑलवेज आर द बेसिक्स। मतलब आपको ऑडिट कर रहे हो तो आप पहले स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, क्योंकि बाकी जो भी चैप्टर्स हैं उनमें स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस दिया हुआ है कि इस स्टैंडर्ड में ये बोला था, ये इसीलिए इस चैप्टर में मेंशनड है। तो अगर आप स्टैंडर्ड सीखे हुए रहोगे, स्टैंडर्ड आपको पता है, तो आप वो चैप्टर में लिंक कर पाओगे कि भाई हाँ यहाँ ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, इसका यहाँ रिजल्ट ये निकल रहा है। तो पहले डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया हुआ रहेगा, वो आपको नहीं समझ आएगा। वो भी स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसके बाद जाओ हाई वेटेड चैप्टर्स। अब क्वेश्चंस और ये कंसेप्ट सारे कवर हो गए। अब जो क्वेश्चंस जो आपने, जो जिन लोगों ने क्लास ले रखी है, वो अगर जो क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं, मार्क कराते हैं ना फैकल्टीज की, हाँ ये एग्जाम डे क्वेश्चंस है, एग्जाम डे लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस है, तो
जो हर चैप्टर में से चार चार पांच पांच क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो आपको लास्ट डे के लिए मार्क करा के रखें। तो उस चार पांच में से कोई एक उठाओ जो मतलब पूरा चैप्टर का एसेंस कवर कर रहा है, और उसको लिख के देखो अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो गो विथ रीडिंग विथ ऑल द फाइव क्वेश्चन। तो सारे पांचों पांचों छह क्वेश्चन जितने भी मार्क कर रखे हैं हर चैप्टर से वो गो थ्रू करो। कुल मिला के 40-50 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वो डुएबल है, दैट इन वन दैट 1.5 डे वो हो सकते हैं। तो वो करो, वो चीज करो, एंड क्वेश्चन करो जो जो मार्क कर रखे हैं। बस बहुत हो गया, कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, और क्या करोगे। अब बस एग्जाम के दिन अपने मंदिर में हाथ वाथ जोड़ के मम्मी पापा के आशीर्वाद लेके जाओ, बस और क्या, हो गया ऑडिट खत्म। जितना भी ऑडिट पे दिए हैं, जितना भी हार्डवर्क किए है, लक आपका तभी साथ देगा जब आप हार्डवर्क करोगे। सोचोगे कि हाँ यार एक बार कोर्स खत्म हो गया, छोड़ो, हो गया, खत्म कर लिया, फिर वो कहीं ना कहीं लक भी आपका फेवर नहीं करेगा। बहुत लोगों को देखा हूँ 39 में अटक जाते हैं। एक सब्जेक्ट में 59 आता है, एक सब्जेक्ट में 39 आता है। तो दो तीर से एक तीर से दो निशाना लगता है। अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला, इमोशन पे हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है कि हाँ भाई, एक तो 39 आया है, ऊपर से एक में 59 भी आया है। कहीं का नहीं रहा ना 59, ना तो एग्जामिनेशन मिला और ना ये सब्जेक्ट निकला। रह भी गया सब्जेक्ट में, अलग वो बात। तो वही है, हार्डवर्क जरूरी है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट में। एंड बस वही है, और देखिए, लक फेवर्स द ब्रेव। एंड उसके बाद कोई स्लाइड है क्या? थैंक यू वाला है। वही लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर आप, वो आपको पता है ना, आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। एंड अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं नहीं जाने वाला आपका वो जो भी वो है, फल है जो आपने मेहनत करा है उसका फल कहीं नहीं जाएगा। वो आपको एक बार लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ याद नहीं आया, बट व्हेन यू विल गो इनटू द एग्जाम, सिट इन द एग्जाम, रिलैक्स करो एंड मेडिटेशन करो, मैं ये बोलूंगा। मैं यहाँ भी आया ना, मैं बेंगलोर में आके भी मेडिटेशन नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। मतलब उठता हूँ 5, 5:30, 6 बजे, जब भी उठता हूँ मुंह धो के थोड़ा बाहर बाहर इधर टहल के मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ। 10 मिनट ही हो, इनिशियली आपका मन नहीं लगेगा मेडिटेशन में कि यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब आंखें खोल लूँ, ये कर लूँ, बट नहीं, आपको 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आधा से 1 घंटा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट आप मेडिटेशन करो। वो आपका मतलब आपका एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। मैंने ये चीज, मेडिटेशन वाली चीज, मैंने जब ये अटेम्प्ट दिया था ना, इंटर का लास्ट वाला अटेम्प्ट जिसमें मेरा इंटर ग्रुप 2 क्लियर हुआ था, मैं वहां से ये अच्छी चीज चालू किया था। एंड सी व्हाट, थ्योरी में 70 आ गए। एफएम में मैं सोचा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ठीक है, ऑडिट में आ गए, और वेल एंड गुड, क्या चाहिए। वही है, मेडिटेशन करो, एंड जो आपने पढ़ा है वो कहीं नहीं जा रहा है। एग्जाम से बाहर निकलोगे तो आपका जो पढ़ाई कर रखी है उसी के ऊपर आपका रिएक्शन बेस्ड रहेगा। बस वही है, ऑडिट जर्नी बिगिंस। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल एंड आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करे। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक किसी ने डाउट दिया, प्लीज शो पॉकेट रिवीजन नोट वंस ऑफ आईसीआई। मतलब आप जो कंसाइज नोट्स आई थिंक बात कर रहे हैं। ओके। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ, पॉकेट रिवीजन मैंने बोला था ना कि आईसीआई शॉर्ट नोट जरूर देता है, बट वो पॉकेट रिवीजन में काउंट होता है कि नहीं, मैं दिखा दूंगा अभी। एक सेकंड, प्लीज शो। कोई सॉफ्ट कॉपी या कुछ है आप तो दिखा सकते हैं, एक सेकंड, या कहीं से डाउनलोड होता है, कुछ होता है, क्या है वो लिंक। एक सेकंड में दिखाई देता हूँ। आई थिंक इट्स लास्ट माइल रेफरेंसर। हाँ सर, वही है। एग्जाम का जो एक 1.5 डे जो लास्ट रिवीजन आप करते हो ना, वो उसके लिए ही बना है वो पॉकेट रिवीजन, वो यहाँ पे तो नहीं, बुक का आईसीआई नाम पे। कुछ और, ये जो पब्लिकेशन सारांश बोल के भी आता है। ये सब इंस्टीट्यूट निकालने लग गया क्या भाई, ये सही में यार। बढ़िया। इंस्टीट्यूट बहुत चीजें प्रोवाइड करने लग गया, बीओएस एप्लीकेशन पे एमसीक्यूज भी आने लग गए अब तो, मतलब हर सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये सारांश गॉट इट। तो समझ गया, मिल गया जवाब। सारांश बोल के है, कुछ आता है, पता नहीं, देखो मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा आइडिया, अच्छा हुआ किसी ने रेफर किया है। सारांश है। और बीओएस का क्या है, एमसीक्यू का क्या है, बताओ एक बार हेमंत। सर बीओएस ने जो मोबाइल ऐप है ना, बीओएस का जो मोबाइल ऐप है, हम्म। उसमें क्या है कि आपको जो भी छोटा छोटा अपडेट्स रहता है वो मिलता रहता है, मॉक टेस्ट कब आ रहे हैं। उसमें इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंट में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 1 साल हुआ है, जब इंटर में था तभी ये चीज आई थी कि हर सब्जेक्ट के उन्होंने जब एमसीक्यूज निकाल दिए थे, हर हम्म। सब्जेक्ट के, जो वहाँ ओके। पे जितने भी एमसीक्यूज होते हैं जो आईसीआई की तरफ से जो है, वो उन्होंने ऐप पे प्रोवाइड कर रखे थे कि भाई बच्चों का 30 मार्क्स है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए।
क्योंकि तो उस टाइम एमसीक्यू वाला सिस्टम थोड़ा नया था, तो इसीलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए नहीं था एमसीक्यूज। तो हम्म। दे वुड लाइक कि मैं थोड़े एमसीक्यूज बच्चों को दे दूं, तो वो कहाँ से लाएंगे एमसीक्यूज, थोड़ा रेफरेंस के लिए थोड़े एमसीक्यूज उन्होंने प्रोवाइड करे थे, वो सब ऐप पे अवेलेबल थे। तो दैट वाज अ गुड मोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यूज। तो जिसका लास्ट टाइम किसी का था, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर वो सेशन में है, मोबाइल में टाइम वेस्ट होता है, तो मोबाइल में आप वो ऐप डाउनलोड करके कोशिश कीजिए आधा घंटा डेली एमसीक्यू सॉल्व करें। मोबाइल का टाइम हाँ जो है ना, कि फोर्टी हाँ फाइव हाँ, मिनट्स बेस्ट है। 1 घंटा अगर स्पेंड होता है, तो आधा घंटा उसमें से ट्राई कीजिए कि नहीं, आधा घंटा पहले मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद 15 मिनट देखूंगा। उस टाइप में कुछ कर सकते हैं। देखिए, खुद ही आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा जितना भी हो। टेक्निक्स बहुत सारी हैं, बहुत। एक काम को करने का 10 तरीके होते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा फिट तरीका है। राइट। और आप किसकी सुनते हैं? जैसे बोलने वाले तो 10 हैं, लेकिन सुनते आप एक या दो जन के ही हैं। उसी तरीका से आपको करते करते अपने आप पता चलेगा कि ये टेक्निक मेरे ऊपर काम आएंगी। जैसे मेडिटेशन, सुबह उठने वाला बात है या जो भी, तो सब चीजें आपको अपने ऊपर थोड़ा सोच समझ के करो। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सेशन में बहुत सारी नई बातें हमको पता चली हेमंत। थैंक यू सो मच। बहुत डिटेलिंग में सब चीज आपने बताया, क्या आपने फॉलो किया, कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई डाउट अगर किसी को है तो वी कैन टेक अप। हाँ सर। कोई इंटरेक्ट करना चाहता है तो मैं वो कर देता हूँ म्यूट। अनम्यूट कैसे करते हैं सबको? अनम्यूट ऑल कैसे करते हैं यार? एक सेकंड, आस्क ऑल टू अनम्यूट। तो 1 to 1 इंटरेक्शन अगर करना चाहते हैं कोई, एनीबडी? हेमंत इज देयर, आई एम देयर। नहीं? Hello. हाँ हाँ। Hi, Hemant. I'm Ankit. हम्म। या अंकित, हाय, हेलो, हाउ आर यू? Yeah, I'm good. या I टेल मी। want to ask one thing, how to wake up early in the morning? How can I make this consistent? देखो, लाइक हाउ टू वेक अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको थोड़ा मन में करना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपको थ्योरी में ऑब्वियसली पास तो होना ही है, थ्योरी को अच्छे से एफिशिएंट करना है, जस्ट नॉट लाइक पास, थोड़ा सा पास से ऊपर सोचो कि ना ना सिर्फ मेरे को पास होना है, कि मतलब मेरे को अच्छा से पास होना है, ताकि मेरा एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप एग्रीगेट वाला चीज को लेके दिमाग में चलोगे कि हाँ, बहुत लोग एग्रीगेट की वजह से रहते हैं, इसी अटेम्प्ट में मैंने 4 से 5 Mm-hmm. लोगों को देखा एग्रीगेट में रह गए, सारा सब्जेक्ट क्लियर है बट वो एग्रीगेट में रह गए। तो थ्योरी को अगर आपको अच्छे से कैचअप करना है, 100% एफिशिएंसी आपकी मॉर्निंग में ही रहती है, और कोई ऐसा टाइम नहीं है Yes, yes. Hmm. जहाँ पे आपकी 100% एफिशिएंसी रहती है। जैसे जैसे दिन खत्म होता है ना, आपकी एफिशिएंसी 100 रहती है, 80 रहती Reduce है, होती जाती है. 25 जीरो ऐसे होती है। तो 3 to 6 वाला जो टाइम है उसको बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज करो, एंड आई वुड से उसको थ्योरी में ही यूटिलाइज करो, क्योंकि वो जो दिमाग में आपकी चीज चढ़ती है ना, वो फिर आपके हमेशा के लिए रह जाती है, वो कहीं ना कहीं Three स्टोर हो to जाती six, no? है। हाँ, 3 to 6 इज लाइक कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको, उसमें थ्योरी सब्जेक्ट को टालने का कोशिश करो। आई वुड लाइक Okay. टू ऐड समथिंग। या सर, Yes, श्योर। yes. अंकित, आपका एग्जाम मई में है या नवंबर में? फर्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा नवंबर 26 में है। नवंबर 26 है तो बहुत इजी उपाय जो मैंने फॉलो किया था। सपोज आप हम्म। अभी 8 बजे उठते हैं, सपोज आपको टारगेट हाँ, लेना वैसा ही कि, टाइम है, 8 to 9 लाइक। हाँ जो भी, तो सपोज आपको 6 बजे का टाइमिंग रखना है कि मैं 6 बजे उठ जाऊं या 4-5 बजे उठ जाऊं, जो भी वट एवर। तो हम्म। 8 o'clock से डायरेक्ट 6 o'clock कभी भी नहीं हो सकता, किसी के लिए भी नहीं हो सकता। ठीक है? तो क्या यस, होगा, यस ध्यान सर। से सुनिए। 8 का अगर आप 6 कर देंगे, 2 घंटे, थोड़ा स्पीड में मैं बोलता हूँ क्योंकि बाकी जन भी है, सबका वो नहीं यस करेंगे। सर। 8 से अगर आप एक दिन में 6 उठेंगे तो 2 घंटा आपने एक्स्ट्रा, मतलब स्लीप काटा ना आपका, तो वो दो यस, करेक्ट। घंटा स्लीप काटने से आपका फिजिकल बहुत इफेक्ट हो जाएगा। राइट। तो क्या या कर ट्रू। सकते हैं, 8 को पहले आप 3 महीना 4 महीना का टारगेट लीजिए। 8 को पहले 7:45 कीजिए, कि आप आज अगर 8 बजे कंसिस्टेंटली उठ रहे हैं, नेक्स्ट वीक से आप कोशिश कीजिए 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स अर्ली 7:45 मुझे उठना है। 46 नहीं होने देना है, कुछ भी हो जाओ। 15 मिनट आई थिंक यू कैन मैनेज। तो 10-15 दिन आप क्या करेंगे, 7:45 पे उठना है, 7:40 उठो, 42, 43, वट एवर, 45 के बियॉन्ड नहीं होना है। उतना आप डिटर्मिनेशन लेके आइए कि 15 मिनट आपको जल्दी उठना है, बस जस्ट 15 मिनट। फिर 7:45 होगा, धीरे 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 धीरे। तो फिर 7:45 से आप उसको 7:30 लेके जाइए,
7:15 लेके जाइए, 7 लेके जाइए, 2-3 महीना का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डेडिकेशन आपको रखना होगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि एवरीथिंग इज अ वार, मतलब आपको लड़ना है जीतने के लिए। तो अगर आपको Yes, sir. लड़ना True. है तो सामने वाले से भारी होना पड़ेगा। यू कैन नॉट विन विथ अ वीक माइंडसेट। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे कैरियर हो, चाहे ऑफिस हो, कुछ भी हो। आपको एक्सेल करना है ना, आपको मतलब आगे बढ़ना है, तो लड़ के ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो उसके लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग माइंडसेट। वीक माइंडसेट से नहीं लड़ा जाता। ठीक है ना। तो जो भी हो आप एक, Yes, sir. समझ मैं गया। हमेशा एक ही चीज सोचता हूँ कि जिस भी पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, आज मान लीजिए मेरा सीए हो गया, तो वो मैं भी 3 बार फेल हुआ था। हेमंत को शायद मालूम होगा, हमेशा मैं बोलता हूँ 3 बार मैं फेल हुआ, तो फोर्थ टाइम एक ही चीज चेंज किया मुझे, सबसे बहुत चीजें मतलब इफेक्ट हुई। एक सेंटेंस मेरा एक फ्रेंड का मुझे हमेशा याद रहता है कि तुम भूल गए कि तुम लोकेश अग्रवाल हो, मैं नहीं भूला। तो वो चीज जो है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट आपका जो है, आपने एक लीगेसी क्रिएट किया अपना काम से, अपना मेहनत से, एक पोजीशन पे आप पहुंचे, उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। बस। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है कि हाई लेवल पहुंच के, जैसे मान लीजिए गोविंदा एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहता है। बॉलीवुड में गोविंदा एक सुपरस्टार बोले जाते थे, बट उन्होंने मेंटेन नहीं किया Yes, तो आज yes. कोई नहीं पूछता। या क्रिकेट में आप देख लीजिए, पृथ्वी शॉ बोल के हैं, तो क्या वो बहुत एक टाइम पर मतलब उनको सचिन से कंपेयर किया जाता था, बट ही कुड नॉट मेंटेन। तो वो डाउनफॉल आ जाएगा अगर आप उसको कंटिन्यू या कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं करेंगे। तो हमेशा आगे बढ़ने का अगर आपको सोचना है, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपका खुद का इच्छा चाहिए बस। आपको अगर बढ़ना है तो आपको ही करना पड़ेगा ना, आपके लिए जल्दी कोई और उठने से नहीं होगा। मानता हूं 10 में से 2 दिन इच्छा नहीं करता, बट 10 में से 8 दिन आपको उठना चाहिए। और जैसे 8 को 7:45, फिर 7:30, 15-15 दिन से कीजिए, तो डेफिनेटली बाय 2-3 मंथ्स यू कैन अचीव योर टारगेट। ठीक है। Yes, sir. I will हाँ। apply it. Thank you. चलो, और कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी साथ में करना चाहिए। हाँ जरूर। अच्छा हेमंत, बोलो प्लीज। हाँ सर। बोलो हेमंत। बोलिए सर। फिजिकल एक्सरसाइज भी साथ में करना चाहिए, मेहुल का क्वेश्चन है। फिजिकल एक्सरसाइज सर मैं नहीं मतलब रिकमेंड करूंगा कि फिजिकल एक्सरसाइज हम्म। करो। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो आपको शरीर को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। हम्म। क्योंकि यहाँ आने के बाद, मैं भी बैंगलोर आने के बाद मैंने भी सोचा कि यार ऑफिस के साथ साथ थोड़ा हेल्थ भी मेंटेन रखूं, बट नहीं होता है। सुबह फिर आगे अब पढ़ाई भी रहेगी तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता। 2 दिन करूंगा, 4 दिन में बीमार रहूंगा, फिर 2 दिन छूट जाने से वो और इफेक्ट करता है। राइट, ये बात तो सही है। आप एग्जाम के ऊपर है अभी फिलहाल, मतलब अगर बहुत क्लोज है तो टाइम नहीं है आपके पास, तो मत चेंज कीजिए अपना हम्म। एक्टिविटीज। और हम्म। टाइम है तो आप उसको कंसिस्टेंटली धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला 15 मिनट आप शुरू कीजिए, 20 मिनट कीजिए, 15 मिनट 10 मिनट करना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे 1 घंटा कल से करूंगा, वो कभी भी नहीं हो पाएगा, और कभी भी जरूरी नहीं। नहीं है कि सर फिजिकल एक्सरसाइज में ये पुशअप वगैरह ये मेन हाँ। है। फिजिकल एक्सरसाइज में वॉकिंग आता है, मतलब राइट, जंप कर बहुत लिया। कुछ होता है। हाँ, जंप कर लिया थोड़ा देर, तो क्या बॉडी मेटाबॉलिज्म पूरा हाँ, वो हो जाता है। थोड़ा फुर्ती आता है, बस वही बात है। हाँ, 10-15 मिनट आप शुरू कीजिए, है ना, जो भी करना चाहते हैं। अगर टाइम टू लेके, अब 1-1.5 महीना आप किसी का मई में है तो नहीं कीजिए, अगर हम्म। नवंबर में है तो आप 2-3 महीना उसको तान सकते हैं ना। हाँ हाँ सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन, एनीबडी? सर आपको बताना चाहूंगा, अंकित मेरे यहाँ बैंगलोर से ही है, मैं जानता हूँ इसको। अच्छा अच्छा, अरे वाह अंकित, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, अच्छा लगा सेशन अटेंड किए। और आई थिंक इट वाज हेल्पफुल। प्लस हम लोग ग्रुप में है ही, एनी टाइम एनी क्वेश्चंस। ग्रुप इसीलिए बनाया है, देखो को बहुत जन क्या करते हैं, ग्रुप को म्यूट करके रखते हैं, ओनली एडमिन ओनली। मैं कभी भी ये नहीं चाहता। उस ग्रुप का पर्पस ही यही है कि एवरीबडी हु अप्रोचेबल रहे हम लोग। आज हेमंत है, और भी बहुत जन है, मैं भी हूँ, मैं तो फ्री रहता हूँ। तो कोई भी चीज हो ग्रुप में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, सॉल्यूशन करने के लिए ही वो ग्रुप बना है। क्योंकि एक्सपर्ट्स, आज जैसे हेमंत ऑडिट में एक्सपर्ट है, वैसे और भी हैं। तो कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे डेफिनेटली, वो एक्सपर्ट्स ढूंढना मेरा काम है। तो उस हिसाब से हम लोग ढूंढ के लाएंगे। ग्रुप एकदम सपोर्ट के लिए बना है, कभी भी उसको एडमिन ओनली नहीं करेंगे। उल्टा पुल्टा कोई देना चाहेगा और तो फिर बात अलग है ना, लेकिन मेंटेन करके रखने का कोशिश करते हैं, है ना। तो आराम से ग्रुप में कभी भी हो, हेमंत भी है, मैं भी हूँ, दीपेश भी है, एवरीबडी। आई हैव मतलब मेड अ बैकएंड टीम की, हाँ आप सपोर्ट में रहो। क्योंकि एवरीथिंग एक आदमी नहीं कर सकता, राइट। तो 4-5 जन है बैकएंड में, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी इशू हो आप ग्रुप में दीजिए।
और बस यही बोलना है कि इसको शेयर कीजिए थोड़ा, ताकि एवरीबडी कैन टेक द बेनिफिट, हु नीड्स द प्लेटफॉर्म, वो इसको पता चले कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है वेर यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है। सर डाउट है सर। हाँ हाँ बोलिए ना। सर जैसे अभी ये हेमंत भैया ने ऐसे बोला कि जैसे आपको जो पढ़ के जैसे आपका खुद का सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, और जैसे को अगर कुछ नहीं समझ में आया तो जैसे डिक्शनरी वगैरह से देख लो। तो उस चीज से जैसे मैं कुछ रिलेट कर पाया, क्योंकि मैं खुद आईसीए का स्टडी मटेरियल से ही सारा पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैं खुद भी। तो सर जस्ट अ सेकंड मेहुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप थोड़ा मतलब माइक को अच्छे से रखे हुए, वैसे आप थोड़ा पोजिशनिंग करके वैसे बोलो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ हाँ, रही है अभी? या हाँ, नाउ इट्स कमिंग, टेल मी। तो मैं जैसे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, जैसे आपने जैसे बोला कि इससे अगर कुछ नहीं समझ आओ तो चलो वो तो मैं डिक्शनरी से देख के उसका मीनिंग वहाँ पे लिख भी लेता हूँ वहाँ पे। और जैसे आपने जैसे कुछ 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 जैसे पॉइंट टच किया, जैसे अगर कुछ नहीं समझ आता तो उसका नोट्स वगैरह बना लो, या अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे वो रिवीजन में भी हेल्प हेल्प करेगा। जैसे मैं मेरा जैसे क्वेरी आपसे ये था कि जैसे हम लोग अगर ऐसे का मॉड्यूल से पढ़ते हैं, तो हम लोग एक तो चीज उसका दो चीज हम लोग को फिर बनाना चाहिए। पहले तो उसका अंडरस्टैंडिंग बनाओ, जैसे मान लो कि ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक है, जैसे उसका आइटम्स है, मतलब जैसे कि कैसे हम लोग ऑडिट का चेकिंग करें इन्वेस्टमेंट बैंक की इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो उसका मान लो कि एग्जामिन दिस दैट, एग्जामिन लेजर ऑफ बैंक, एग्जामिन कैश रिजर्व रेशियो, या जो भी है, मतलब 10 पॉइंट दे देते। ठीक है, तो 10 पॉइंट का हम लोग को जैसे एक समरी भी बना लेना चाहिए, और ऐसे कुछ नोट्स भी बनाना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन भी बना लेना चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग जैसे तीनों चीज बना लेना चाहिए। नोट्स भी अगर एक समराइज मैनर में बना लेना चाहिए, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बना, जैसे कि मान लो कि एक नोट है, जैसे मान लो कि एग्जामिन द बैलेंसेस विद अदर बैंक्स। ठीक है, बैंक का आरबीआई के पास में जो बैलेंसेस है उसको एग्जामिन करो। ठीक है, तब उसका हम लोग कोई एक्सप्लेनेशन भी अलग से लिखे जैसे उस लाइन का, तो हम लोग को इन डेप्थ क्लैरिटी है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे जैसे मान लो कि कोई ऐसा एक टेक्निकल लाइन है जैसे, तो उसका हम लोग को एक एक्सप्लेनेशन भी वहां लिखना चाहिए, फिर उसका उसी उसी जगह पे हम लोग को फिर उसका नोट्स या समरी वो सब भी थोड़ा बनाना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा। अच्छा, हाँ, मैं आपका पॉइंट समझा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नोट्स है, एक्सप्लेनेशन है, समरी है, वो तीनों अलग अलग बनाओ। कोई भी अगर आपको जैसे एक टॉपिक है, उसमें कोई भी एक टेक्निकल लाइन है, तो उसको एक उसी टॉपिक के साइड में अलग से लिख के रखो कि हाँ यार, ये मेरे को फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो अब जितनी बार भी देखूंगा ये थोड़ी स्मूथ होती जाएगी, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो चीज़ आपको उस मतलब पैराग्राफ में, या जो भी आपकी है हेडिंग है, या कोई भी टॉपिक है, वो आपको हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नोट्स अलग से बनाओ, उसकी एक इन डेप्थ क्लैरिटी नोट्स अलग से बनाओ क्लैरिटी के लिए, अब मतलब उसके निमोनिक्स अलग से बनाओ, ऐसा नहीं है। वो जो एक कंसेप्ट है उसी को आप समराइज्ड वे में लिखो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, अपने नोट्स में कवर करो, उसको कन्वर्ट करो। जो मेन जो मतलब डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है, वो तो आपने बोला ना कि आप सेल्फ स्टडी करो, मॉड्यूल में भर भर के है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। आप हर चीज के पीछे जाओगे तो आप नहीं कवर कर पाओगे ऑडिट। मॉड्यूल में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भरा रखा है। तो जो टॉपिक है उसमें से आप समराइज में अपनी कॉपी में नोट बनाओ, और उसी नोट में आप जो खेला कूदी करना है करो, उसी में निमोनिक्स बनाओ, उसी में जो हाईलाइट करना है करो, और उसी में जो आपको कोई अगर मान लो वर्ड नहीं समझ आ रहा तो उसी में उसका मीनिंग लिखो, कोई अलग से करने का जरूरत नहीं है। ताकि जब आप रिवीजन करो ना, आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाए, आपको अलग अलग पन्ने नहीं पलटने पड़े। जो भी टॉपिक को आपको समराइज करके उसके साथ जो भी करना है वो वही करो। मैंने अपनी जो टेक्निक्स थी वो मैंने जो मतलब करी थी ऑडिट के टाइम में, मैंने अपनी टेक्निक्स बताई है, मैंने कहीं से टेक्निक्स निकाली नहीं है। तो जो जो भी चीजें करनी है वो उस नोट्स में करो, ये मेरा बेस्ट तरीका मानना है, मतलब यही है बेस्ट। ओके सर। क्लियर हो गया आपका डाउट? हाँ हाँ, हो गया। थैंक यू। ओके, थैंक। चलो। और किसी को कोई डाउट? हाँ, और किसी को कोई डाउट है? अच्छा। थैंक यू अंशुल। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो, अच्छा लगा तुम थे शुरू से ही। और एक लास्ट सेशन और करेंगे बिफोर द एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। 1.5 दिन में कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है? मैं उसका अनाउंसमेंट करूंगा ग्रुप में। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन सर। हाँ, थैंक यू हेमंत, तुमने अच्छा किया बहुत, मतलब एक्चुअली मेन रीजन क्या है देखो, पता चलता है ना किसका क्या है। आज तुम लोग जो चीज फॉलो किए हो, लास्ट वीक भी हमने सेशन किया था, लास्ट टू लास्ट वीक, तो पैशनेटली यू आर टेलिंग विच मीन्स, वो मुझे अच्छा लगता है कि तुमने एक्चुअली वो चीजें फॉलो की है, तभी रिजल्ट्स आया है। तो वो तुम लोग एकदम पैशनेटली शेयर करते हो, और बस वही अच्छा लगता है। चलो ठीक है, विल ठीक है वाइंड अप सर, थैंक। एवरीबडी, सर कोई थैंक गलती यू। हुई हो तो बताओ मुझे भी, मैं भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ।
हाँ चलो, वो मैं तुमको अलग से नहीं। ओके सर, डेफिनेटली। हाँ ये बात सही है। अप्रिसिएशन फॉर हेमंत फॉर इस फर्स्ट वेबिनार, और बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा। ठीक है, योर थैंक यू पीपीटी सर। इज अमेजिंग। हाँ ये बात तो मैंने उसको कल भी बोला था। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ ग्रुप में पीपीटी तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा, चलो शेयर कर सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात। चलो जो भी हो। थैंक यू एवरीवन, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। हेमंत, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर, टेकिंग थैंक आउट यू टाइम फॉर। एंड शेयरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग पिछली क्लास की थर्सडे को जाएंगी, और इसका भी जितना जल्दी हो सके मैं करता हूँ। ठीक है ना, बहुत लेट नहीं करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।